درد عطا ہو مجھے وہ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم۔ ہم اور آپ اس وقت سب سے بڑے نصیبے کے مالک ہیں کہ ہم اس ذات پاک کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کا خراج پیش کرنے آئے ہیں کہ چاند و سورج اس آسمان پر بہت پرانے ہیں مگر اس کے باوجود یہ چاند و سورج آج تک اس سے خوبصورت انسان پر نہ طلوع ہوا ہے نہ اس سے خوبصورت انسان پر غروب ہوا۔ اس عظیم الشان ہستی کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرنے کے لیے حاضر آئے ہیں۔ تمامی حضرات قابل مبارکباد ہیں جنہوں نے اس کے سجانے میں کسی قسم کی بھی تعاون یا حصہ لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے تعاون کو قبول فرمائے، اور علماء کرام جنہوں نے اپنی حاضری سے اس بزم کو رونق بخشا اور اس کی کامیابی کے لیے اپنی حاضری پیش کی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس خلوص اور ایثار کو قبول فرمائے۔ حضرت مولانا مدین الدین صاحب کا شاندار معلوماتی خطاب ہوا نبی پاک علیہ السلام کی فضیلت اور سیرت اور قسمت کے حوالے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ہم سب کو نبی پاک علیہ السلام کی غلامی میں قبول فرمائے۔ ربیع الاول امیدوں کی دنیا ساتھ لے آیا، دعاؤں کی قبولیت کو ہاتھوں ہاتھ لے آیا۔ وہ دن آیا کہ پورے ہو گئے تورات کے وعدے، خدا نے آج ایفا کر دیے ہر بات کے وعدے۔ بسط انداز یکتائی بغایت شان زیبائی، امی بن کر امانت آمنہ کی گود میں آئی۔ فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی۔ سلام اے ذل رحمانی، سلام اے نور یزدانی، تیرا نقش قدم ہے زندگی کی لوح پیشانی۔ سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر نہ چاندی تھی نہ سونا تھا۔ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں درود پاک کی نظریں پیش کر کے اپنے غلامی کا ثبوت پیش کرنا پڑے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا مولانا محمد بعد الجود والکرم، بارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی پاک علیہ السلام کی فضیلتوں پر ہمیشہ آپ خطابہ تقریر سنتے آئے ہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ان کی زندگی کے کچھ گوشے آپ کے سامنے رکھوں تاکہ ایک غلام کے سامنے اپنے آقا کی زندگی روشن اور ظاہر ہو، ورنہ آقا کائنات علیہ السلام کی زندگی کے وہ گوشے ہیں کہ جنہیں کوئی انسان بیان ہی نہیں کر سکتا۔ انسان کی سانسیں کم پڑ سکتی ہے، آقا کائنات کی زندگی کے گوشے کبھی ختم نہیں ہو سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی دکان ہی بڑھا دی اس ذات کو بنانے کے بعد، کیا پوری کائنات میں پھر اس کے بعد ایسا آدمی نہ پیدا ہوا نہ پیدا ہوگا۔ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ ہماری چشم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز میں۔ جرمنی کے ایک شاعر نے جس کو اقبال نے فرنگی منظور کہا، وہ انسان اپنے دور میں پریشان رہا، تلاش کرتا رہا، ایک انسان کامل کی اسے تلاش تھی، ایسا مکمل انسان وہ تلاش کرتا رہا اپنے زمانے میں کہ جو انسان ہر طرح کی برائیوں سے پاک ہو، جسمانی برائیوں سے پاک ہو اور اندرونی بیماریوں سے پاک ہو، ہر طرح کی برائیوں سے پاک ہو، مگر وہ شخص اپنی تلاش میں ناکام رہا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
उस इंसान कामिल को पैदा फरमा दिया है, अब उसके बाद किसी इंसान को पैदा होना ही नहीं है। तो हम उसकी सीरत बयान करने जा रहे हैं। मक्का की सुबह है, अभी रात का काफिला गुजरने वाला था, सुबह तुलू होने वाली थी, और जब सुबह का वक्त होता है और ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, लोग नींद से बेदार होते हैं, तो उस वक्त सुबह की नींद बड़ी मीठी और प्यारी होती है। इंसान बार बार उठता है, बार बार सोता है। बिस्तर की शिकनें इंसान को आवाज देती है कि प्यारे, नींद का मजा तो अभी सोने में है, सुबह के वक्त का मजा लो, नींद की आखिरी लज्जत को महरूम छोड़ देना, ये बड़ी बड़ी की बात है। रात गुजर रही थी, सुबह तुलू हुआ जा रहा था, पूरी मक्का की आबादी महवे ख्वाब थी, सब सो रही थी, मगर कुरैश का एक बावकार शख्स दीवार पर टेक लगाए, कंबल ओढ़े, किसी फिक्र में, किसी सोच में डूबा हुआ है। और जब सूरज के तुलू होने का वक्त करीब आया, घर के लोग बेदार हुए, सबकी नजरें बनु हाशिम के उस सरदार के पर टिकी हुई है कि ये शख्स आखिर सोच क्या रहा है, मगर वो सरदार कुरैश थे, किसी को पूछने की जुर्रत नहीं होती थी। वो शख्स सोच रहा है, यकायक जब सूरज तुलू हुआ, वो शख्स उठ जाता है, खड़ा होकर अपने घर के बरामदे में टहलने लगता है। तेज तेज कदमों से कभी आगे की तरफ जाता है, कभी पीछे की तरफ आता है। कोई किसी को कुछ पूछने की हिम्मत नहीं होती है। आपस में लोग चेमी गोइयां करते हैं कि आखिर अब्दुल मुत्तलिब का यह हाल आज क्यों है। अब्दुल मुत्तलिब आज नदवा की तरफ नहीं गए हैं जहां पर कुरैश के सरदारों की मीटिंग होती है। आज सोच क्या रहे कि यकायक अब्दुल मुत्तलिब तेज कदमों से आए, अपनी तलवारें उठा ली, तलवार उठाई और कहा कि लाओ अब्दुल्लाह, बुलाओ अब्दुल्लाह को, कहाँ है अब्दुल्लाह, लाओ उसे काबे की दीवारों की साए में लाओ, आज मैं उसे ज़बह करके अपनी मिन्नत पूरा करूंगा, आज उसकी मिन्नत पूरा करूंगा, उसे ज़बह करके। अब्दुल्लाह जानते हैं कौन है? यह अब्दुल्लाह हमारे नबी, आपके नबी, साही कायनात के नबी, आकाए कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिद हैं। अब अब्दुल मुत्तलिब ने, उन्होंने ये मिन्नत मानी थी अल्लाह से कि अल्लाह तबारक व तआला जो 10 बेटे मुझे अता करेगा, तो एक बेटे को मैं अल्लाह की रजा के लिए कुर्बान करूंगा। अब देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला अपनी नेमतों की हिफाजत कैसे करता है। अब्दुल मुत्तलिब की ज़बान से अल्फाज निकले कि अब्दुल्लाह को बुलाओ, आज काबे की दीवार के साए में उसे कुर्बान करके अपनी मिन्नत पूरा करूंगा। घर के लोगों पर सख्ता ताली हो गया, लोग आपस में सरगोशियां करने लगे। रफ्ता रफ्ता ये आवाज़ दूसरों के कानों तक पहुंचने लगी, यहाँ तक कि ये आवाज़ अब्दुल्लाह की नानी के घर वालों के यहाँ तक ये आवाज़ पहुंच गई। लोग दौड़े दौड़े चले आए, अब्दुल मुत्तलिब खड़े हैं, और उसके बाद ये आवाज़ सुनी थी कि अब्दुल्लाह अपने भाइयों के साथ, अबू तालिब के साथ, अपने भाई हमजा के साथ, अपने भाई अब्बास के साथ, अपने भाई अबू लहब के साथ अब्दुल मुत्तलिब की बारगाह में पहुंच गए। अब्दुल मुत्तलिब बैठे हैं कि वहां पर आपके खानदान के लोगों की भीड़ लगी, अब्दुल्लाह के नानिहाल के लोगों की भीड़ लगी कि आज अब्दुल मुत्तलिब इतने गुस्से में क्यों है, किसी को कुछ कहने की हिम्मत नहीं होती। यहाँ तक कि अबू तालिब आगे आते हैं और कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता है, अब्दुल्लाह के गले पर छुरी जब चलेगी जब हम सब की जानें चली जाएंगी। अब्दुल्लाह क्या थे? अब्दुल्लाह खूबसूरती की एक मिसाल थे, जवानी ऐसी कि उस जवानी पर हजारों जवानियां कुर्बान, शर्म हया के बगैर अब्दुल्लाह वो ऐसी शख्सियत थी उनकी कि दिल मनमोह लेने वाली। नानिहाल वाले आ गए, मुदाखलत करने लगे कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। लोग प्यार दिखाने लगे, रहम जताने लगे, अब्दुल्लाह की मोहब्बत, अब्दुल्लाह की गैरत, हज़रत अब्दुल्लाह का वो वक़ार था, उनके चेहरे पर ऐसी खूबसूरती थी, मासूमियत थी कि लोगों को प्यार करने लगे। अब अब्दुल मुत्तलिब चूंकि वो कुरैश के सरदार थे, और अरब में एक बात ये होती थी
کہ معمولی سے معمولی آدمی بھی جب کوئی وعدہ کر لیتا تھا تو چاہے اس کی جان چلی جائے مگر وعدہ ضرور پورا کرتا تھا، اپنی زبان کو کبھی خالی نہیں جانے دیتا تھا۔ تو عرب کے معمولی آدمی کا یہ حال تھا۔ اور پھر عبد المطلب تو سردار قریش تھے، لوگ جمع ہو گئے تو عبد المطلب نے کہا کہ ہمدردی کا یہ اچھا طریقہ ہے کہ ایک خوددار اور غیرت مند آدمی کو اپنا وعدہ وفا کرنے سے روکا جاتا ہے، اپنی منتیں پوری کرنے سے روکا جاتا ہے۔ تم لوگوں کو میرے بیٹے عبداللہ سے ہمدردی تو ہے مگر ہماری غیرت سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، ہماری زبان کی وفاداری کا کوئی خیال نہیں ہے۔ ہم نے منت مانگی ہے تو یہ منت پوری ہو کر رہے گی۔ ایک شریف انسان کی یہ پہچان ہے کہ جب کوئی منت مانگتا ہے تو اسے پوری کرتا ہے۔ مگر اب عبد المطلب کی زبان کسی کو کوئی کہنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ آخر ایک انتہائی تجربہ کار شخص، جہاں دیدہ شخص، معمر اور بوڑھا شخص کھڑا ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ عبد المطلب اگر کہو، اگر تمہاری اجازت ہو تو میں کچھ بات کہنا چاہتا ہوں، کیا تم اس بات کو مانو گے؟ عبد المطلب نے کہا کہ بوڑھے میاں مجھ سے کسی بات کا وعدہ نہ کرو، مجھ سے کسی بات کا اقرار نہ لو، تمہیں جو کہنا اپنی بات کہہ دو۔ اس بوڑھے نے کہا بات یہ ہے کہ بنو عامر کے قبیلے میں ایک کاہنہ رہتی ہے، آپ نے اس کا نام سنا ہے؟ کہا کہ ہاں، اسے کون نہیں جانتا، یمن کے فرمانروا سے اس کے پاس خیرات آتے ہیں، انعامات اور تحائف آتے ہیں۔ وہ کاہنہ بڑی معروف ہے، اس کی کہی ہوئی باتیں گویا کہ غیب کی باتیں ہوا کرتی ہیں۔ کہا کہ ہاں، ایسا کیوں نہ ہو کہ ہم اس کاہنہ کے پاس چلے۔ اس زمانے میں بہت سارے لوگ کاہنوں کے پاس جا کے اپنی باتیں، اپنی قسمتیں، اپنی نصیبیں دکھوایا کرتے تھے، اپنے ہاتھ کی لکیریں سے دکھوایا کرتے تھے۔ عبد المطلب نے کہا کہ ٹھیک ہے چلتے ہیں مگر میں اپنی زبان پر قائم ہوں۔ عبد المطلب جب چلنے لگے تلوار اپنے ساتھ رکھ لی، کہا کہ لوگوں نے کہا کہ بس تلوار تو اپنے ساتھ رکھ دیں۔ کہا کہ نہیں، آپ نے کہا ہے میں جانے کے لیے تیار ہوں مگر تلوار مجھے اپنے ساتھ رکھنے دی جائے، اس لیے کہ میں اپنی بات پر اٹل ہوں۔ قافلہ چلا وہ کاہنہ کے پاس۔ وہ کاہنہ کیا تھی؟ بال بکھرے ہوئے، عجیب طرح کی، ڈراؤنی طرح کی دیکھنے میں صورت تھی۔ اس زمانے میں لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ غیب کی باتیں، عالم غیب کی باتیں عام چہرے مہرے والوں پر ظاہر نہیں ہوتی۔ غیب کی باتیں جاننے کے لیے انتہائی بیکاری طرح کا چہرہ ہونا ضروری ہے، بال بکھرا ہوا ضروری ہے، عام طرح کا انسان ہو تو غیب کی باتیں نہیں بتا سکتا۔ ڈراؤنی شکل و صورت اس کے پاس پہنچے۔ کوئی زمانے جاہلیت تھا، لوگ اس نے پڑھے لکھے نہیں تھے، کوئی تلواروں پر بیٹھ گیا، کوئی تلواروں کا ٹیک لگا کر بیٹھ گیا، کوئی دو پاؤں پر دو زانو ہو کر بیٹھ گیا، اپنے اپنے طرح سے لوگ بیٹھ گئے، ساری باتیں اس کے سامنے پیش کی گئی۔ تو کسی نے کہہ دیا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ عبداللہ کی جان بچ جائے۔ عبد المطلب فوراً غصہ گئے، کہا یہ کہنے کی جرأت کیسے ہوئی تمہیں بس اپنا مدعا کہو کہ بات ہماری یہ ہے، جان بچنے کی بات مت کہو۔ انہوں نے کہا کہ اے کاہنہ آپ مقدس ہیں، آپ کے علم کا ہم احترام کرتے ہیں، آپ کسی کی بات کا کوئی لحاظ نہ کیجیے، آپ کا علم جو کہتا ہے بس وہ بات ظاہر کر دیجیے، آپ کا علم جو بات کہتا ہے وہ بات ظاہر کر دیجیے۔ کاہنہ نے کہا کہ اس منت کی دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ عبداللہ اور اس کے ساتھ اونٹوں کے نام کا قرعہ ڈالا جائے۔ عبد المطلب نے کہا کہ ہم نے منت مانی تھی کہ جب 10 بیٹے ہوں گے تو ایک بیٹے کو اللہ کے نام قربان کروں گا، جب 10 بیٹے دے دیے اللہ نے تو میں نے سب کے نام کا ڈال کر، سب کے نام کی پرچی لکھ کر پرچی اٹھائی تھی ہم نے، تو ہم نے یہ 10 بار ہم نے کر کے دیکھ لیا، ہر بار عبداللہ کا 10 بار پرچی ڈالی، ہر پرچی ہم نے مکمل احتیاط کیا کہیں پہ غلطی تو نہیں، 10 بار پرچی ڈالی، ہر بار عبداللہ کا نام نکلا، ہم اسے ہی قربان کریں گے۔ تو کاہنہ نے کہا کہ اس کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے، ہمارے علم میں سامنے آتی ہے کہ آپ عبداللہ کے ساتھ اونٹوں کے نام کی پرچی ڈالیں، پھر پرچی اٹھائیں، یہاں تک کہ 10 اونٹوں کے ساتھ پرچی بڑھاتے جائیں، اور اس وقت تک یہ قرعہ ڈالتے رہیں جب تک عبداللہ کی جگہ پر اونٹ کا نام نہ نکل آئے۔ اب چونکہ اس زمانے میں کاہنہ کے بات کا خیال بہت رکھا جاتا تھا تو چلے گئے، معاملہ یہ آیا تو ایک پرچی میں عبداللہ کا نام لکھا گیا، ایک پرچی پہ 10 اونٹ کا نام لکھا گیا۔
10 ऊँट। अब 2 पर्ची है, 2 पर्ची, एक ऊँट के नाम की पर्ची है, 10 ऊँट के नाम की पर्ची, और एक अब्दुल्ला के नाम की पर्ची है। पर्ची उठाई गई, अब्दुल्ला का नाम लिखा, फिर एक पर्ची पर 20 ऊँट लिखा गया, एक पर्ची पर अब्दुल्ला लिखा गया। फिर पर्ची उठाई गई तो अब्दुल्ला के नाम लिखा। इस तरह से 10-10 ऊँट बढ़ाते गए, मगर जब 100 ऊँट जाकर पहुंचा तब जाकर अब्दुल्ला के बजाय ऊँट का नाम निकला। अब्दुल मुत्तलिब खुश हुए, कुरैश के लोग खुश हुए, बनु हाशिम के एक अफराद के सरों पर खुशियों के आसार नजर आए। अब्दुल मुत्तलिब ने ले जाकर बुलंदी के मकाम पर 100 ऊँट ले जाकर ज़ब्ह कर दिया और इस तरह से मिन्नत पूरी हुई। बनु हाशिम के घराने में खुशियों का माहौल बर्पा हो गया। बड़े बड़े देगों में खाने बने। अरबों का महबूब खाना सरीद है, उसमें शोरबा होता था, रोटियां तोड़कर भिगो दी जाती थी। उस सरीद के जरिए से खूब ज़ियाफत हुई, लोग लंगरों में खाना खाने लगे। ऊँट की बड़ी बड़ी बोटियां आई तो किसी ने बड़ी बोटियां खाकर कहा ये तो इसकी बोटियां, इसकी हड्डियां इंतहाई मजबूत है, लगता है कि इस ऊँट के आबाव अजदाद लोहार का काम करते थे। ये तस्वीर का एक रुख रहा। अब दूसरी तरफ आगे चलते हैं। अब्दुल्ला, हज़रत अब्दुल्ला जिनकी जान बची है कितनी मुशक्क़तों के बाद, और अल्लाह तबारक व तआला ने इस नेमत की हिफाज़त किस लिए फरमाई? इस तौर पर फरमाई कि वो इस्माइल ज़बीहुल्लाह जिन्होंने आक़ा कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम का दादा बनने का शर्फ हासिल था, उन्होंने भी अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह इसी तरह से ज़िक्र अज़ीम का एक नमूना पेश किया था। और चूंकि अल्लाह तबारक व तआला को उस नस्ल में नबी पैदा करना मकसूद था तो वहाँ इस्माइल की हिफाज़त फरमाई थी, अभी अब्दुल्ला की हिफाज़त फरमाई। वो अब्दुल्ला शराफत, इफ़्फ़त, पाक दामनी, अरब के माहौल में जहाँ लोग शराब के नशे में चूर होते थे, जहाँ जरा जरा सी बात पर तलवारें न्याम से बाहर आ जाती थी, अरब का वो माहौल जहाँ पर रक्स व सुरूर, किसी की इज्जत पर डाके डाल देना, किसी के साथ बदतमीजी कर देना, ये सारी आम मामूली बातें थी। मगर अब्दुल्ला उस गंदगी के माहौल में उन्होंने अपने दामन को ऐसा बचा कर रखा कि एक मौके पर मर्रुल खशीमा एक अरब कबीले के सरदार की बेटी है, जिसके हुस्न व जवानी के चर्चे हुआ करते थे मक्का की गलियों पर। मक्का की एक जवान पर उसकी बेटी का नाम हुआ करता था। मगर वो जवान लड़की जब मक्का की गलियों में चलती तो क़यामतें बर्पा करती हुई चलती थी। उसकी जवानी के चलते थे, मगर मक्का की जवानों की तरफ उसकी निगाह नहीं उठती थी। वो मगर अब्दुल्ला एक बार गली से गुजर रहे थे, यकायक मर्रुल खशीमा के आलीशान महल का दरवाजा खुला, उससे उसकी बेटी नमूदार हुई, जिसकी हुस्न व जवानी के चर्चे हुआ करते थे। उसने अब्दुल्ला को दावत गुनाह दी, मगर अब्दुल्ला इफ़्फ़त, हया, मासूम, ऐसी कुंवारी लड़कियों जैसी हया उनमें थी कि उनमें उसकी बात का जवाब न दिया। उन्होंने उस जवान लड़की थी, होशमंद थी, चालाक थी, उसने अपने दिल को दिलासा दिलाया, उसने अपनी हुस्न की खैरत, उसने अपने हुस्न की तौहीद समझी कि हमने इसे दावत दी। मक्का के जवान हमारे लिए पागल हुए जाते हैं, मक्का के जवान हमारे के लिए बेकरार है, हमारी एक इशारा अबरू के मुंतज़िर है, हम आंख का एक इशारा कर दे तो वो मर मिटने के लिए तैयार है। मगर अब्दुल्ला को हमने दावत गुनाह दी, मगर कोई कशिश उसे महसूस नहीं हुई, उसे अपने ऊपर गैरत आई। उसने फिर अपने आप का संभाला और कहा कि अब्दुल्ला, हुस्न और शराब की दावत को कभी ठुकराया नहीं जाता है, इतनी आसानी के साथ इस मौके को हाथ से न जानो। दुनिया की जिंदगी चंद रोजा है, मजे कर लो, मजे के साथ गुजार लो। इसलिए कि उस वक्त लोगों में आखिरत का, मौत का कोई तस्वुर नहीं था। मरने के बाद फिर पैदा होना है, इस बात की जिंदगी कुछ थी नहीं उसके सामने। अब्दुल्ला ने कहा कि नहीं, मैं सिर्फ हलाल तरीके से ही इस रास्ते को जायज समझता हूँ, वरना हराम चीज मुझे जितनी बुलाती रहेगी मैं कभी इस चीज की तरफ आने वाला नहीं हूँ। आप दामन बचाकर निकल गए। ये अब्दुल्ला है। अब उनके यकायक एक कबीला था वहाँ पर यसरफ के आसपास में, वहाँ एक अब्द मनाफ का एक कबीला था, वो भी अपने कबीले के सरदार थे। उनके कबीलों में लोग खाना खाते थे, बहुत सारे लोग आते थे, गरीब आते थे, मिस्कीन आते थे, उनकी ज़ियाफत होती थी, मेहमान नवाजी होती थी। और सरदार कुरैश इकट्ठा थे। अब्द मनाफ से किसी ने पूछा कि आखिर अब्दुल्ला के यहाँ से, अब्दुल मुत्तलिब सरदार कुरैश के यहाँ से जो रिश्ते की बात आई थी, आखिर उसका हुआ क्या? आखिर उसका कोई जवाब दे दो, इसलिए कि अब्दुल्ला जैसा हसीन लड़का मिल नहीं सकता है।
وہ عبداللہ جس کے لیے قریش کے صرف قریش کے قبیلے میں نہ جانے کتنی عورتیں ہیں، کتنی بیٹیاں ہیں جو اس سے بیاہ لے کے ان کی راہ دیکھ رہی ہیں، کتنے قریش لڑکیوں کی اس کے پاس کمی نہیں ہے، مگر کیونکہ عبد المطلب کے گھرانے سے رشتہ آیا ہے، وہ بھی عبداللہ کا رشتہ آیا ہے۔ عبداللہ خوبصورت ایسا خوبصورت کہ بیٹے آپ کے سارے حسین تھے، اور خاص کر ابو لہب جو نبی کے چچا بھی ہے، ابو لہب وہ اور گورا تھا، اور مگر اس کا گھوڑا ہونے کے ساتھ اتنا زیادہ لال تھا کہ انگارے جیسا آگ اس کے چہرے سے برستا تھا، اتنا زیادہ گورا تھا، مگر یہ گورا پر انگارے جیسی وحشت ہوتی تھی کہ آدمی گورے آدمی کو دیکھ کر طبیعت میں خوشی ہوتی ہے، مگر ابو لہب کو دیکھ کر طبیعت میں ڈر اور خوف سا پیدا ہوتا، انگارے جیسا سوچ تھا، مگر عبداللہ گورے تھے اور ایسی چہرے پر شادابی تھی گویا کہ پھولوں کو دیکھنے کے بعد انسانوں کے چہرے پہ شادابی آ جاتی۔ عبداللہ کا چہرہ اتنا حسین تھا، آخرکار وہاں سے لوگ آئے، عبداللہ کا رشتہ طے ہو گیا، عبد المطلب نے نکاح کے اعلان کیا کہ آج سے عرب کا رسم و رواج جو ہوتا تھا اس کے مطابق عبد المطلب نے اعلان کیا کہ آج سے عبد المطلب اور آمنہ، عبداللہ اور آمنہ دونوں ایک دوسرے کے نکاح میں شامل ہو گئے، دونوں جیون ساتھی بن گئے۔ آمنہ کو لایا گیا، عبد المطلب کے یہاں شاندار انداز میں ضیافت ہوئی، ولیمہ ہوا، لوگوں نے کھانا کھایا، انتہائی حسین خوشی کے ساتھ سب لوگ چلے گئے۔ اب تاریخ کا قدم آگے بڑھتا ہے اور عبداللہ کی شادی کو 3 مہینے ہوتے ہیں کہ لوگوں نے دیکھا کہ عبد المطلب کے گھر کے سامنے گھوڑے تیار ہیں، اونٹ تیار ہیں، اس پر تجارت کا سامان لادا جا رہا ہے، تجارت کا سامان لادا جا رہا ہے۔ کہا کہ کون ہے جو آج تجارت پر جا رہا ہے؟ اس وقت عرب میں لوگ اکثر تجارت کے لیے شام کی منڈیوں میں جایا کرتے تھے۔ آج تجارت کے لیے سامان تیار کیے جا رہے ہیں، اونٹ تیار کیا جا رہا ہے، کجاوے کسے جا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ کو آج شام پر جانے کا دن تھا، وہ شادی ہوئی ہے، ابھی 3 مہینہ ہوا ہے۔ جواب عبداللہ، کسی نے کہا کہ عبداللہ سنبھل کر جانا، 6 منزل جا کر ایک نخلستان کھجوروں کا ایک باغ آتا ہے، وہ علاقہ انتہائی گھنا ہے، درخت ہے، اور اس علاقے میں بڑے بڑے خوفناک جانور رہتے ہیں، ڈاکو رہتے ہیں، لٹیرے رہتے ہیں۔ عبداللہ نے اپنی تلواروں کی طرف دیکھا، چمچماتی ہوئی تلواروں کو نیام سے باہر نکالا، تلواروں کی طرف نظر فرمائی، آپ نے کچھ کہا نہیں، گویا کہ تلواروں کی طرف دیکھنا ہی اس کا جواب تھا کہ اب بنو ہاشم کے لوگ اپنی بہادری اور جوان مردی میں اپنی مثال نہیں رکھتے ہیں، اگر ایسا موقع آیا تو تلواریں ہمارے نیام سے باہر ہو جائیں گی اور عرب کے لوگ دیکھیں کہ ہماری تلواروں میں کتنا دم۔ عبداللہ کو اونٹ پر انتہائی دولہا بنا کر ان کو بدا کیا جا رہا ہے، سبھی لوگ خوشی میں مگن تھے کہ عبداللہ جائیں گے، چلے آئیں گے، مگر ایک آمنہ تھی، حسرت افسوس کی ایک تصویر بنے گھر کے ایک کونے پہ کھڑی تھی، لیکن غیرت مند خاتون تھی، غیرت مند گھرانے کی خاتون تھی۔ آمنہ بت بنی کھڑی تھی کہ آج ان کا شوہر نامدار جا رہا ہے، ابھی شادی کو صرف 3 مہینے ہوئے ہیں اور شام کے ایسے دور دراز علاقے میں جا رہے ہیں، پتہ نہیں پھر دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو۔ آمنہ مگر شرم و حیا غیرت کی تصویر تھی، اپنے سسر کے سامنے وہ زبان نہیں کھول سکتی تھی، مگر آمنہ کے جذبات یہ تھے، اپنے دل میں وہ کہتی تھی کہ اے شوہر نامدار، آپ جا رہے ہیں، یقیناً آپ جا سکتے ہیں، مگر اگر ہمارا بس چلتا تو وہ کبھی آپ کو جانے نہیں دیتی، بنا ہوا کجاوا روک دیتا، اونٹ کو اس اونٹ کے اوپر سے اس کے سامان خالی کروا دیتا، میں اس کے پاؤں پکڑ لوگ لیتی، پاؤں پکڑ کر کہتی عبداللہ تم نہ جانا، تمہارے بغیر ہماری زندگی اداس رہتی تھی، مگر آمنہ کا بس کیا چلتا تھا۔ حضرت عبداللہ سوار ہو گئے، اونٹ پر سوار ہوئے، اونٹ چلتا چلا گیا، یہاں تک کہ آمنہ گھر کے پاس جو چھت تھی آپ اس پر سوار ہو گئی، دور تک جب اب عبداللہ کی سواری جہاں تک نظر آتی رہی، آمنہ حسرت و افسوس کے ساتھ دیکھتی رہی، یہاں تک کہ اونٹ نگاہوں سے گزر گیا۔ عبداللہ چلے گئے، یہ آمنہ اور عبداللہ کی آخری ملاقات تھی، کسی کو پتا نہیں تھا کہ اب یہ آخری ملاقات ہوگی، صرف شادی کے 3 مہینے تھے۔ عبداللہ کا قافلہ تھا، جب مکہ کی گلیوں سے گزر رہا تھا، عورتوں نے دیکھا، کہا کہ اس سے پہلے بھی لوگ قریش میں سے بنو ہاشم کے لوگ شام تجارت کے لیے جایا کرتے تھے، مگر آج تک یہ ماحول نہیں ہوا
ऐसा लग रहा था कि गोया अब्दुल्ला का ये आखिरी सफर है। लोग इतने एहतमाम के साथ उसे विदा कर रहे थे। किसी औरत ने कहा कि हम एक बात तुमने गौर की, अब्दुल्ला जब जा रहा था तो शादी से पहले उसकी पेशानी पर एक नूर चमकता था, ऐसा नूर चमकता था कि ऐसी खूबसूरती, ऐसी रोशनी आज तक किसी की पेशानी में नजर ही नहीं आया। मगर तुमने कुछ गौर किया कि आज जब उसकी सवारी जा रही थी शाम की तरफ तो वो नूर उसकी पेशानी से गायब था, नूर उसकी पेशानी से गायब था। कहा कि हाँ, ये बात तो हमने भी गौर की कि उसके चेहरे, उसकी पेशानी में वो कशिश और वो नूर और वो जाज़िबियत नहीं थी जो पहले हुआ करती थी। अब्दुल्ला की आवाज कान में, ये आवाज तो पहुंची कि औरतें, अरब की औरतें, बूढ़ी औरतें ये बात कह रही है कि हमारी पेशानी पर से नूर गायब हुआ है। मगर सुनी बात, कुछ सुनी कुछ अधूरी करती, ऊँट की रफ्तार तेज होने लगी और वो ऊँट की सवारी में मगन हो गए। अब्दुल्ला शाम के सफर पर रवाना हो गए। सभी लोग अपने अपने काम में मगन हो गए। मगर एक आमना का दिल था कि अब्दुल्ला के साथ ही, उनके साथ ही चला गया। सब लोग यहाँ थे, सभी लोग अपने अपने कामों में मशगूल थे। मगर आमना थी कि जब भी वो तन्हाई में होती, उन्हीं का गम, उन्हीं की याद, उन्हीं के साथ हमेशा मस्त रहती। कुछ कनीज़ें आती, उनको दिलासा देती कि क्या है, चंद दिनों की तो बात है। अरब के लोग तो हमेशा जाते हैं तिजारत के लिए, सभी लोग जाते हैं, चंद दिनों के बाद वापस चले आते हैं। वो भी तिजारत पर गए, वापस आ जाएंगे। अब आमना उनकी बातों को सुनती, तसल्ली देती और कहती, सबसे कहने की हिम्मत नहीं होती। कनीज थी तो उनसे अपने दिल की बात कहती। पता नहीं सफर में किस आलम में होंगे, बड़ी पुरखतर रास्ते हुआ करते हैं, पता नहीं जंगलों में, बयाबानों में शेर हुआ करते हैं, जानवर हुआ करते हैं, डाक हुआ करते हैं, लटेरे हुआ करते हैं, पता नहीं किस हालत में होंगे। उन्होंने खाना खाया होगा या नहीं खाया होगा, पानी पिया होगा या नहीं पिया होगा, उन्हें रास्ते में परेशानी तो नहीं हुई। ये सारे तज़किरे होते हैं। कनीज़ कहती है कि नहीं, ऐसा होता रहता है, यहाँ तक के दिन गुजरते गए। एक वक्त वो आता है कि अब आपकी शाम से वापसी का सफ़र होता है। अब जब शाम से वापसी होती है कि अबवा नाम की एक जगह आती है, वहाँ पर पहुँचकर आप नबी कायनात अलैहिस्सलाम के वालिद अब्दुल्ला की तबीयत नासाज हो जाती है। इधर आमना महबे हैरत, महबे इंतजार है कि काफिला कब आए और हम उसके इस्तकबाल के लिए जाएं और हमारा शौहर नामदार हमें मुस्कुरा कर देखे और हमारे सारे गम दूर हो जाए। आमना सराफा इंतजार है कि एक काफिला जो शाम को गया था वो आ गया। शाम से जब वापस आया तो अब्दुल मुत्तलिब ने उससे पूछा कि क्या खबर है, मेरा अब्दुल्ला कहाँ है? उसने कहा कि हाँ, हमने अब्दुल्ला को देखा था, अबवा के मकाम पर उसकी तबीयत नासाज हो गई थी, तबीयत जरा ज्यादा नासाज थी, इसलिए वो चल फिरने के काबिल नहीं था, तो वो वहीं पर है। लोग उसकी तीमारदारी कर रहे हैं। यसरफ जहाँ पर उनका ससुराल था, वहाँ से लोग उनकी खातिर तवाज़ो कर रहे हैं, लोग उसकी खूब ज़ियाफ़त कर रहे हैं, मेहमान नवाजी कर रहे हैं। कोई फिक्र करने की बात नहीं है। आमना ने जब ये खबर सुनी, आपका कलेजा धक से होकर रह गया कि शौहर नामदार परदेश में है। काश मैं उनके साथ होती, मैं उनकी देखभाल करती, अपने हाथों से खाना खिलाती, अपने हाथों से पानी पिलाती, उनके पाँव दबाती, उनके सरों पे मालिश करती। आमना के दिल के ये अरमान थे। मगर अगर उसके अपने पर होते तो वो उड़कर बाहर पहुंच जाती। मगर वो एक गैरतमंद खातून थी कि अपने जो गार्जियन थे उसकी मर्जी के बगैर घर से एक कदम निकाल नहीं सकती थी। आखिर वो अल्लाह की मर्जी पर राजी बनता रही। अफसोस तो होता था, मगर कनीज़ें उन्हें दिलासा दिलाती थी, कहती थी कि अरे तंदुरुस्त आदमी ही तो बीमार हुआ करते हैं, बीमार तो अच्छा भी हो जाया करते हैं। बीबी गम न करो, वो जल्दी अच्छे हो जाएंगे, आपके दरमियान होंगे, आपके चेहरे पर खुशी लौट आएगी। वो कहती थी, मगर उन्हें इत्मीनान नहीं होता था, उन्हें अंदर से वहशत होती थी। मगर दिन आए, गुजरते चले गए, फिर कोई खबर नहीं आई, फिर कोई खबर आई कि नहीं अभी भी बीमार है। ये काफिला रात के दिनों के आने का सिलसिला गुजरता चला गया। जिंदगी यूं ही तमाम होती है कि आदमी एकदम आता है, मगर फिर जिंदगी की भीड़ भाड़, काम, मसरूफियात, खाना पीना, कमाना, जिंदगी की इतनी मसरूफियात है कि आदमी उनमें मगन हो जाता है। जिंदगी के शामों शहर गुजरते चले गए कि मक्का पर एक इनकलाब आफिल सुबह के तुलू होने का वक्त आता है। एक रात है कि मक्का के ऊपर खुशबू की बारिश होती है, हर तरफ अब अंधेरे में उजाले, और अल्लाह तबारक व तआला को इस दुनिया पर प्यार आता है, इंसानियत पर प्यार आता है। मक्का के लोग अजीब अजीब ख्वाब देखने लगते हैं।
आमना अजीब अजीब ख्वाब देखने लगती है। आमना ने देखा कि रात का मौसम है, देखती क्या है, उनकी आंख लगी तो देखा कि बहिश्त आसमान से नूरानी काफिला है जो हमारे घर की छत पर उतर आया है। फरिश्तों ने आवाज दी, एक खातून पर्दादार खातून हमारे बगल में आई है। फरिश्तों ने गैब से एक आवाज आई कि ये हाजरा है, इस्माइल की माँ, इब्राहिम की बीवी है हाजरा। किसी ने एक पर्दादार खातून उतरी, फरिश्त गैब से आवाज आई कि ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की माँ है। किसी ने कहा ये फिरौन की बीवी आसिया है। इस तरह से बहिश्त का काफिला वहां पर उतरा है। आमना है, उनका घर है। आज उनका घर क्या था? गोया कि नूर का एक रोशन मीनारा था, रोशन मीनारा था। अब सुबह आने को है और रात नहीं, रात क्या जाने को है। सिर्फ रात का अंधेरा नहीं छटेगा, बल्कि दुनिया से जुल्मत व जहालत और कुफ्र का अंधेरा छटने वाला था। आज पूरी दुनिया की बुलंदी, इकबाल, नसीबे का सूरज शुरू होने वाला था। इसलिए कि आज निदा आई, दरीचे खोल दो ऐवान कुदरत के, नजारे खुद करेगी आज कुदरत, शान कुदरत के। नबी कायनात अलैहिस्सलाम की पैदाइश का वक्त करीब आ रहा था। आमना खुशियों में मगन थी, हर तरफ खुशबू ही खुशबू। गोया ऐसा लगता था कि पूरी हवा में, फिजाओं में किसी ने कस्तूरी छेड़ दी, किसी ने खुशबू अंबर छेड़ दिया हो। हर तरफ नूरी माहौल हो गया। सुबह का वक्त हुआ और आका कायनात अलैहिस्सलाम इस खाकदानी गेदी पे तशरीफ लाए। ऐसा अनमोल नजारा, ऐसी सुबह दुनिया के पर्दे पर आज तक न तुलू हुई थी, क़यामत तक फिर कभी तुलू होगी। इसलिए कि आज सबसे दुनिया का सबसे कीमती इंसान इस दुनिया में तशरीफ लाया था। उधर क्यों पैदा हुए? उधर मक्के में हर घर में हर एक शख्स का अपना अपना खुदा था। अपने हाथों से बनाए हुए खुदा थे, अपने हाथों से बनाए हुए खुदा। घर में सबके अपने अपने खुदा थे। इधर आपकी पैदाइश हुई, सारे खुदा सर के बल अपने अपने जिस जगह थे वहीं पर सजदे में गिर गए, सजदे में गिर गए। लोग डर गए कि क्या हुआ, हमारे खुदा हमसे नाराज हो गए, जमीन पर गिरे पड़े जा रहे हैं। लोगों ने उठाया अपने माबूदों को, मगर फिर वो सजदे में गिर पड़े। लोग हैरान है, डरने लगे, आखिर क्या हुआ, हमारे खुदा हमसे नाराज है। लोग दौड़े दौड़े गए अपने पड़ोसी के घर में, माजरा बयान किया कि हमारे लाख हमसे नाराज हो गए हैं। हम उन्हें संभालते हैं, फिर वो जमीन पर आकर गिर जाते हैं। हम उन्हें सहारा देते हैं, फिर जमीन पर आकर गिर जाते हैं। कहा कि हमारे साथ तो यही मामला पेश आ रहा है कि कोई शख्स दौड़ा अपने कबीले के इंतहाई मोहम्मद शख्स के पास गया। कहा कि आज हमारे खुदा हमसे नाराज हो गए हैं, हमारे बुत हम उनको संभालते हैं मगर समझते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि तुम अपने खुदा के लिए परेशान हो, मैं अपने खुदा को लेकर परेशान हूँ। देखते नहीं हो कि हमारा खुदा खुद जमीन पर पड़ा हुआ। मैं इसे रात से सुबह से जब तक सुबह शुरू हुई है तब से मैं इसे संभाल रहा हूँ, मगर ये समझ नहीं रहा है। मैं इसे खड़ा करता हूँ, फिर ये सजदे में गिर पड़ता है। सारे लोगों ने, इसलिए कि उस दिन कुफ्र की मौत का दिन था। नबी कायनात अलैहिस्सलाम की आमद हुई। काबा पर खुशियों के आसार नमदार हुए। किसी ने सदा लगाई कि जाओ सरदार कुरैश को बुला लाओ, आज उन्हें खुशी और मज़िया सुनाते हैं। अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा का तवाफ कर रहे थे, किसी ने नवाज दे मुबारकबाद दी कि अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो, आज अल्लाह तबारक व तआला ने आपको जानशीन अता फरमाया है। अब्दुल मुत्तलिब आए थे और जब उस नौनिहाल को लेकर अपने चेहरे पर अपने गोद में उठाया है तो गोया कि दुनिया की सारी खुशियां उनके दामन में सिमट कर चली आई। अब्दुल मुत्तलिब की आंखों में खुशियों के आंसू आ गए कि ऐसा नौनिहाल, ऐसा खूबसूरत, ऐसा मुखड़ा, ऐसी काली जुल्फों वाला, ऐसा हसीन मनमोहने वाला चेहरा आज तक दुनिया की निगाहों में नहीं देखा होगा। अब्दुल मुत्तलिब उस मुखड़े को देखते हैं और मुस्कुराने लगते हैं। वहाँ पर जो दाया थी, औरतें थी, उन्होंने कहा कि अब्दुल मुत्तलिब हम इसे सरदार कुरैश, क्या आज से हम इसे इब्ने अब्दुल्लाह कहकर पुकारे? इब्ने अब्दुल्लाह मतलब अब्दुल्लाह का बेटा कहकर पुकारे। अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुराने लगे और कहा कि तुम्हारा इशारा ये है कि मैं इसका नाम रख दूं, तो सुन लो, आज से इसका नाम मैंने मोहम्मद रखा और अहमद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक नाम, ये नाम ऐसी शीरनी थी, इस नाम की शीरनी, चूंकि अरबी जबान का नाम है तो इस लफ्ज की शीरनी और मिठास अरब के लोग ही सही मानों में समझ सकते हैं। ये नाम ऐसा नाम है कि गोया एक होठ दूसरे होठ का लगता है।
मोहम्मद मीम जब अदा होती है तो एक होठ दूसरे होठ से मिलकर ऐसी चाशनी और हलावत अदा करते हैं कि अरब के लोग जब सुनते हैं तो वो खुश हो जाते हैं, उसके तबीयत में एक निशान पैदा हो जाता है। लोग अरब की दाया ने कहा कि वाह क्या खूबसूरत नाम है। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मैंने इसका नाम मोहम्मद रखा है। मोहम्मद का मतलब होता है जिसकी तारीफ की जाए। मैंने इसका नाम इसलिए रखा है कि ये देखना एक दिन वो आएगा कि इसकी तारीफ हर जगह होगी। और सिर्फ ये नहीं, अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि जमीन पर इसकी तारीफ होगी। अब्दुल मुत्तलिब ने जमीन के बारे में कहा, मगर मशीयत मुस्कुरा रही थी, फरिश्ते देख रहे थे, मशीयत कह रही थी कि अब्दुल मुत्तलिब तुम तो ये कहते हो कि जमीन पर इसके नाम का चर्चा होगा, मगर एक वक्त वो आएगा कि आसमानों में फरिश्तों के दरमियान इसके नाम का चर्चा होगा। मशीयत मुस्कुरा रही थी, पर्दा गैब से मशीयत झांक रही थी। अब आपकी विलादत हो गई और हर तरफ आपकी विलादत के चर्चे होने लगे। गली गली में, घर घर में आपकी विलादत का, आपके हुस्न खूबसूरती का, आपके मनमोहने मुखड़ा का, आपके हुस्न का, लबो रुखसार का, आपके मुबारक का, आपके पाए अक़दस का, आपके पाँव का, सर से लेकर पाँव तक एक एक अज़्म का चर्चा होने लगा घर घर में। कहा कि यकीनन ज़ुबैर के घर में एक बेटा पैदा हुआ था, इंतहाई हसीन है, जिसकी खूबसूरती का घर घर में चर्चा था। मगर आज जो अब्दुल मुत्तलिब के घर में अब्दुल्ला का बेटा पैदा हुआ है, ज़ुबैर के घर में जो बच्चा पैदा हुआ है, उस बच्चे का गाल भी मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला के पाँव और तलवे की बराबरी नहीं कर सकता। उसके लबो रुखसार भी उसके तलवों का मुकाबला नहीं कर सकते। इतना हसीन था। घर घर में चर्चा होते कि यकीन अपने मुनाफ के यहाँ जब बेटा पैदा हुआ था तो उसने पूरे कबीले वालों को खाना खिलाया था, मगर फिर भी उसका बेटा अब्दुल मुत्तलिब के फर्जंद जैसा खूबसूरत नहीं है। गली गली में चर्चे होने लगे, यहाँ तक कि आपकी उम्र जिंदगी यूं तमाम होती है, जिस्त होती है, सुबह शाम सहर होती है, काफिले लैलो नहार आते जाते हैं, बसर बसर चले जाते हैं, रात आती है, दिन चला जाता है, दिन आता है, रात चली जाती है, जिंदगी गुजरती चली जाती है। आपकी जिंदगी का भी काफिला तेजी के साथ बसर होने लगा। यहाँ तक कि जब आप आगोश मादर में थे तो उस वक्त हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बाद परवरिश का ही मौका आता है, मगर परवरिश से पहले अभी आपके आगोश में थे कि जब आपके 3 माह आपकी उम्र होती है तो यकाएक अब्दुल्ला अब तक सफ़र से वापस नहीं आए थे कि शाम से काफिला वापस आता है, अब्दुल मुत्तलिब काफिले के पास आते हैं कि आखिर क्या खबर है। अब्दुल मुत्तलिब जब काफिले के पास पहुंचते हैं तो ऐसी खबर जिससे सर से लेकर पांव तक रोंगटे खड़े हो गए, पांव तले जमीन निकल गई। सूरज निकला हुआ था मगर आंखों के सामने अठाने लगा, क्योंकि खबर ये आई कि अब्दुल्ला ने बीमारी की हालत में यसरत में अपनी आखिरी सांस ले ली। अल्लाह की अमानत थी, अल्लाह के हवाले में। अब्दुल मुत्तलिब परेशान हाल, घबराए हुए, बाल बिखरे हुए, गमछा रुमाल आपकी गर्दन में पड़ा हुआ था कि इसी आलम में आप घर तशरीफ लाए। आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जो सरापा इंतजार की खड़ी थी कि अब्दुल मुत्तलिब आएंगे, हमारे शौहर नामदार की खुशखबरी लेकर आएंगे, क्या ख्याल है उनकी सेहत की आफियत की खुशखबरी लेकर आएंगे। आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के सामने अब्दुल मुत्तलिब आए। अब्दुल मुत्तलिब से पूछा आमना ने कि क्या खबर है शौहर नामदार की। अब्दुल मुत्तलिब की आंखों में आंसू आ गए, उनके ज़बान से ऐसा जुमला निकला जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती थी, जिसका तसव्वुर नहीं किया जाता था। अरब के लोगों में एक खास बात ये होती थी कि वो बात तोड़ मरोड़ नहीं कहना चाहते थे, एज पेट से अपनी बात नहीं कहते थे, बल्कि साफ सुथरी बात कहते थे। अब्दुल मुत्तलिब ने एक लफ्ज़ कहा, मोहम्मद आज यतीम हो गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आमना रज़ियल्लाहु ताला उनके दिल धक से होकर रह गए, मगर चूंकि ससुर आपके सामने थे तो गैरत थी उनकी, वफा का पर्दा और हया था कि उनकी आंखों के आंसू थमे रहे। मगर अब्दुल मुत्तलिब जो ही वहां से हटे, आपकी चीखें निकल गई, आपके आंसुओं का आहों का काफिला रवा हो गया, आंसू से शराबोर हो गई, रोने लगी। इतना गम हुआ शौहर नामदार की मौत। शादी की अभी 3 ही महीने साथ में गुजरे थे और उसके बाद जुदा हो गए थे।
फिर उनका चेहरा तक देखना नसीब नहीं हुआ। परदेश की मौत पता नहीं किसने खबर ये देखी, कितनी मशक्कत हुई, एक तमन्ना ही रह गई कम से कम आखिरी वक्त में उनकी ज़ियारत तो कर लेती, उनकी खिदमत का शरफ हासिल हो जाता, मगर दिल के सारे अरमान थे जो दिल ही के दिल में रह गए। आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास उसके बाद और कोई सहारा न बचा था, बस एक सहारा था जो मोहम्मद अरबी की शक्ल में था, उसी को देखकर इस होशामो से हर होती थी। अब यही एक मन में लेने वाला मुखड़ा था जो हर गम के मदावा था, जो हर दुख का एक दरमा था, उन्हीं का चेहरा देखकर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट खिलती थी, जिंदगी सुबह शामों से हर होती गई। यहाँ तक कि जब आप चंद दिनों के लायक हुए तो अरब में एक दस्तूर था कि दाइया दूध पिलाया करती थी, और अरब मक्का से दूर कहीं पहाड़ों के इलाकों में, जंगलों के इलाकों में जहाँ की हवा साफ सुथरी हुआ करती थी, वहाँ पर लोग अपने बच्चों को भेज दिया करते थे ताकि साफ सुथरी हवा में जब बच्चे की परवरिश होगी तो बच्चा ताकतवर होगा और इंतहाई सेहतमंद, तंदुरुस्त और तवाना होगा। ये अरब की रवायत रहती थी, क्योंकि उस जमाने में लोगों को ताकत बहुत बड़ी चीज थी, लोगों के जंग को वो गैर मामूली अहमियत दिया करते थे। उनके पास लोग, अरब के लोगों के दरमियान ताकत, कुव्वत, गैरत, ये सारी चीजें थी, मगर एक बुरी बात ये थी कि उन्हें सही रास्ते की तमीज नहीं थी। ताकत वो इस्तेमाल करते थे मगर गलत रास्ते में इस्तेमाल करते थे। माल को खर्च करते थे मगर गलत रास्ते में खर्च करते थे। माल को खर्च करते थे, खूब खर्च करते थे, मगर शराब नशीबों में लुटा देते थे। तो अरब के लोगों के दस्तूर था कि दाइयों के पास दूध पिलाने के लिए क्या करते थे। तो दाइया आई, लोग और दाइयों की कोशिश रहती थी कि अमीर से अमीर हमारे साथ हो। यकीनन हर इंसान के साथ पेट जैसा एक दोस्त जो लाहिक है, ये इंसान को हर सारे इंसान की आंखों पर पट्टियां बांध देता है, इंसान की आंखों पर पट्टियां बांध देता है। पेट एक ऐसी चीज है, सबकी तरफ होती थी कि कोई बड़े घराने का बच्चा मिल जाए, घर में माला माल करते दूध पिलाने के वजह। यकीनन ये इंसान जरा ये दुनिया ही नजर वाक़ई हुई है कि दुनिया को सिर्फ छिलका चाहिए, पूरा छोड़ देती है। तो सारी लोग, सारी दाइयाँ अपने अपने तौर से बड़े बड़े घरानों में गई, नेमतों से माला माल हुई, बच्चा लेकर चली आई, मगर एक हलीमा थी जो किस्मत की मारी हुई, दुनिया समझती थी कि किस्मत की मारी हुई है, मगर किसे पता था कि अब उसकी किस्मत सातवें आसमान से भी बुलंद होने वाली है। किसी को खबर तो नहीं थी। सब बड़े बड़े लोगों के लोग बच्चे लेकर चले गई है दाइयाँ, उनमें चर्चे होने लगे कि हम सभी लोग तो लेकर चले आए हैं, हम सभी लोग तो लेकर चले आए हैं। तो किसी ने कहा, एक दाई ने कहा कि हम जो बच्चे को लेकर आए हैं इसके दादा ने हमें 1000 दिनार दिए और साथ में 7 नए जोड़े कपड़े भी दिए हैं। तो दूसरी दाइया ने कहा कि हमारे जो बच्चा है इसके बाप ने हमें 100 रूट अता किए हैं और कहा है कि जब इसे वापस करने के लिए आओगे तो इससे जरूर हम तुम्हें अता करेंगे। एक दाई ने कुछ और कहा, सारी दाइयाँ आपस में बातें करने लगी, मगर अब हलीमा के बारे में अफसोस करने लगी कि हलीमा बेचारे किस्मत की मारी, एक तो ऊँटनी भी लागत और कमजोर लेकर आई है जो सही से अपने पाँव पर खड़ी नहीं हो सकती है। दूसरी ये है कि एक जिस घराने में गई है, सारे घरानों के बच्चे खत्म हो गए, जिस घराने में वो गई है वो बच्चा क्या है, यतीम है। यकीनन अब्दुल मुत्तलिब कुरैश के सरदार है, घराना तो बड़ा है, मगर अब्दुल मुत्तलिब के घराने का ही आलम है कि उनके घर में जितना माल आता है वो लोगों को घरों को खाने पिलाने में पिला देते हैं। उनके यहाँ आमदनी की कमी नहीं, खर्च बहुत है, इसलिए कि वो काबा में आने वाले, हज में आने वाले तमाम लोगों की मेजबानी कर क्या करते हैं। तो उस घराने से उन्हें सिवाय दुआ के और कुछ नहीं मिल सकता है, मगर सिर्फ दुआ से काम तो नहीं चलता ना। इंसान चाहे 100 दुआएं न दे मगर एक सिक्का डाल दे वही काफी है। इंसान का पेट दुआओं से नहीं भरता, पैसे से भरता है। हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा गई, अपने अफसोस के मारे कि हमें कोई नहीं मिला, आखिरकार गई यतीम बच्चे को लेने के लिए, मगर आगोश में सुनी हलीमा के मोहम्मद आए हैं। उनके चेहरे पर नजर पड़ी थी कि सारा अफसोस, हसरत और मलाल सारा का सारा खत्म हो गया। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट फैलने लगी, हलीमा मुस्कुराने लगी और ऐसा लगा कि गोया कि उसने एक बच्चे को नहीं बल्कि पूरी कायनात को अपनी गोद में ले लिया। सुभान अल्लाह, पूरी दुनिया अपनी गोद में ले ली है, ऐसा हलीमा को यूं लगा। हजरत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा देखने लगी
गोया कि पूरी कायनात और मोहम्मद मुस्तफ़ा मुस्कुराने लगे देखकर हलीमा को यूं लगा कि ऐसा गोया कि ये बच्चा मुझे बरसों से पहचानता है। और गोया कि हलीमा नहीं मुस्कुरा रही थी बल्कि हलीमा की किस्मत मुस्कुरा रही थी। आमना ने कहा कि बीवी मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है सिवाय दुआओं के, सरा ले जा रही हो तो इसका ख्याल रखना, इंशाअल्लाह इस बच्चे का बड़ा मकाम होगा और तारीख इसके हवाले से तुम्हें जानेगी। इस बच्चे का बड़ा अजीम और शान मकाम होगा। हमने इस बच्चे की पैदाइश के वक्त बहुत से अजीब व गरीब ख्वाब देखे, इंशाअल्लाह ये बच्चा बड़ा होकर बड़ा बनेगा और तुम इसकी अजमत से बड़े बनोगे। हज़रत हलीमा ले गई अपने साथ और ऊँट पर सवार हुई। हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की खुशियों का आलम नहीं था कि यकायक जब आप ऊँटनी पर बैठी है तो ऊँटनी का आलम ये था, आपको बताया जा चुका है कि ऊँटनी का ये आलम था कि जब वो आई थी लागर कमजोर अपने पाँव पे खड़ी नहीं हो सकती थी, चलना तो बहुत दूर की बात है। अब ऊँटनी पर सवार हुई तो ऊँट को जो हाँकने वाला था, जो हौदी खाब था उसका यकायक ऐसा हुआ कि ऊँटनी में ऐसी गजब की रफ्तार पैदा हुई कि हवा से बातें करने लगी। तमाम शजर हजर यूं लगा कि उसके साथ चलने लगे। जब गाड़ी तेज चलती है तो ऐसा लगता है ना कि शजर हजर दरख्तों पर पेड़ जितने चलने लगे, ऐसा लगा कि सारे दरख्त उसके साथ साथ चलने लगे। मोहम्मद अरबी कायनात अलैहिस्सलाम किसी खबर पर कि क्या माजरा है, हैरान हो गया। ऊँट हाँकने वाला हैरान है। और जब ऊँट जो हाँकते थे उसे हुदी खान कहते हैं। जब ऊँटनी को हाँका जाता था अरब में तो अरब के लोग अपनी थकावट दूर करने के लिए कुछ शेर गुनगुनाते जाते थे। वो शेर जिससे उसकी जवानी में उमंग आए, उसके अंदर ताकत आए, उसके जज्बात उमड़े और नफ्स को एक तरह का एक हज़्म महसूस हो, गलत तरह का शेर गाया करते थे। और जब ऊँट को हाँकने वाले ने शेर गाना चाहा तो गलत शेर जो गाया करते थे वो शेर उसे याद भी नहीं आने लगा। ये आका की बरकत थी कि अब गलत अशआर जबान पर नहीं आते थे, वो अशआर भूल गए। उसने कहा कि मैं हमेशा जब भी ऊँटनी को भगाया करता था मैं शेर मजे में कहा करता था, मगर आज क्या बात है कि शेर जबान पर आ ही नहीं रहे हैं। तो आखिर उसने कहा कि हलीमा ऐसा हो कि तुम्हारे कबीले में फसाहत बलागत तुम्हारी कबीले की खेती है, लोगों में ये मशहूर है कि बनु आमिर जिस कबीले से ताल्लुक रखती हो उस कबीले में, उस कबीले के खेतों में सब्जियां नहीं बल्कि फसाद और जबान होती है, जबान होती है। उस जबान को तुम्हारे कबीले के लोग शेरगोई में अपनी मिसालें रखते हैं। ऐसा करो हलीमा, तुम ही कोई शेर गाओ, तुम ही कोई शेर गाओ। तो हलीमा ने कहा मोहम्मद कहा कि अब मेरा सारा शेर मोहम्मद से शुरू है, मोहम्मद पे खत्म है, इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं। मेरी सारी खुशी, मेरी सारी जिंदगी, मेरी सारी कुल्फतें, सारी आसानियां, सारी परेशानी मोहम्मद से वापस। अब मुझे मोहम्मद के सिवा कुछ याद ही नहीं। ये चलने लगा काफिला, यहाँ तक कि आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने देखा कि धूप निकली हुई थी, मगर जहाँ जहाँ हमारी ऊँटनी पहुँचती है बादल का टुकड़ा है हमारे साथ साथ चलता है, बादल का टुकड़ा हमारे साथ साथ चल रहा है। उधर किसी ने ऐसा लगता था फिजा से एक ऐसी आवाज आती थी, दरख्तों हजर किस अंदाज में हवाएं दे रहे थे कि गोया यूं लगता था कि गोया वो सलाम कर रहे थे। रास्ते में अजीब गरीब मंजर देखा। अब जिस जगह से काफिला गुजरता था खेत सूखे हुए थे, पेड़ सूख रहे थे, मगर जहां पर काफिला पहुंचता था पेड़ हरी हो जाते थे, खेत हरी होने लगती थी, सबसे लहलहाने लगते थे। हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने ये गैर मामूली वाक़यात देखकर अपने कबीले की तरफ किया। दाइयों ने देखा क्या ये यकायक ये सवा रफ्तार काफिला इसे कहाँ से मिल गया। उन्होंने ये सोचा कि यकीनन अब्दुल मुत्तलिब के यहाँ ऊँटों का बहुत सारा काफिला उनके यहाँ रहता है, शायद उन्होंने ऊँट अता कर दिया होगा। हलीमा ने अपनी सवारी की रफ्तार जारी रखी। काफिला ये मुबारक काफिला जो 3 लोगों का काफिला था इंतहाई नाजुक सलामी के साथ अब अपने कबीले में पहुंचने के लिए तैयार था कि हलीमा के शौहर जो उनके जो शौहर थे अब्दुल्ला, हलीमा के शौहर इंतजार में थे कि पता नहीं अब तक हलीमा नहीं आई। उन्हें अफसोस हुआ कि कहीं ऐसा तो नहीं हुआ कि उस मरियम की ऊँटनी ने कहीं जान दे दी, ऐसा तो नहीं है कि वो मरियम की ऊँटनी ने वफा न किया और वो कहीं बीच में दम तोड़ दी और हलीमा कहीं बीच रास्ते में रह गई, अभी तक वापस नहीं आई।
کہ یکایک اور پھر پتہ نہیں کون سا بچہ ملا, کیا دولت لے کر آ رہی ہے, کیا لے کر آ رہی ہے, طرح طرح کے خیالات تھے جو ان کے شوہر کے ذہن میں آئے. یہاں تک کہ جتنی بدایہ حلیمہ کے ساتھ تھی, حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ سب سے پہلے اس قبیلے میں پہنچا, سب سے قبیلے میں پہنچا. اور جب حلیمہ کے شوہر نے یہ قافلہ دیکھا تو ان کی حیرت کی انتہا نہ رہی. کہا کہ حلیمہ یہ کیا ہو گیا اس پاگل اونٹنی کو, یہ مریم اونٹنی یہاں سے بیمار گئی تھی, آخر اس پگلی کو پاور کہاں سے لگ گیا, اسے یہ پر کہاں سے لگ گیا کہ یہ اونٹنی, یہ تو بڑی حیرت کی بات ہے. اور حلیمہ جب سے تم گئی ہو تو بکریوں کے تھن خشک ہو گئے ہیں, تھن میں پھر دودھ نہیں بچا ہے. اگر حلیمہ کے شوہر یہ بات کہہ رہے تھے کہ اتفاق ایسا ہوا کہ بکریوں کا نام لیا تھا تو بکریوں پر نظر پڑ گئی, بکریوں پر نظر پڑ گئی. کہا کہ حلیمہ تمہارے جانے کے بعد بکریوں کے تھن خشک ہو گئے ہیں, اس کے تھن میں دودھ نہیں بچا ہے. نظر پڑی بکریوں پر تو کیا دیکھا کہ ان کے سارے کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں. ارے وہ حیرت میں آ گئے, ارے ارے یہ کیا ہو گیا, وہ تو تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں, ہم نے کل ہی تو دودھ دھوا تھا مگر ایک بوند دودھ نہیں نکلا تھا, مگر اب تو دودھ سے بھرے ہوئے ہیں. فوراً ان کے شوہر برتن لے کر دودھ کا بڑے ہیں اور دودھ دھوا ہے, پورا برتن دودھ سے لبالب ہو گیا ہے, مگر دودھ کا تھن جو کا دودھ تھا. نبی کائنات علیہ السلام کی آمد کی برکت تجھے سمجھ نہیں آیا. حیرت ہوئی. حضرت حلیمہ نے کہا کہ اے ابو صاحب, اے ابو شیما, اے شیما کے باپ, آپ حیران ہونے کی بات نہیں ہے. تم یہ سوچ رہے ہو کہ یہ بکریوں کے تھن میں دودھ کیسے آ گئے, تو سنو, یہ ہمارے اس آغوش میں پائے جانے والے محمد کے قدم کی برکت ہے. تم نے تو ابھی تک صرف دودھ دیکھا ہے, ہم نے راستے میں آنے والی کتنی کرامتیں دیکھی ہیں, کتنی برکتیں دیکھی ہیں. اور یہ تو صرف ایک بات تھی, آنے والے دنوں میں دیکھنا ہمارے قبیلوں میں برکتیں راج کیا کریں گے, ہمارے قبیلے کے ایک ایک گھروں میں برکتوں کا ضرور ہو جائے گا. حلیمہ نے کہا تھا. اب اس کے بعد ادھر آپ کے قدم مبارک پڑے تھے اس قبیلے میں کہ لوگوں نے اگلی صبح کیا دیکھی تھی. جو لوگ مکہ, جو اس قبیلے کے لوگ تھے, بنو عامر کے قبیلے کے لوگ, تو اس قبیلے کے لوگوں نے جب صبح ہوئی کچھ لوگ اپنے کھیتوں پر گئے تو کیا دیکھا, تو کھیت جو اب تک قحط سالی کے مارے کئی دنوں سے بارش نہیں ہوئی تھی, مسلسل بارش نہ ہونے کے سبب کھیتیاں جلنے لگی تھی, اب فصل مرنے لگے تھے. انتہائی محنت, انتہائی جانفشانی کے ساتھ اس کھیت کی بوائی کا کام کیا تھا. اب اس کی کٹائی کا زمانہ قریب آنے والا تھا, مگر کھیت سب سوکھ رہے تھے, بالیوں میں دانے نہیں تھے, سارے کھیت پیلے پڑنے لگے تھے, سب کے جسم سے جان نکلتی جا رہی تھی. مگر اس دن جب صبح کے وقت کچھ لوگ پہنچے تو یکایک جو سارے کھیت خشک ہو چکے تھے, جس کی بالیاں سوکھنے لگی تھی, یکایک ساری بالیاں ہری ہو گئی. پیڑ پودے جو سوکھ رہے تھے وہ سب کے سب سرسبز و شاداب ہونے لگے. آخر یہ حیرت, لوگوں کو حیرت کیسے ہوئی, کوئی بارش بھی تو نہیں ہوئی, رات میں کوئی بارش بھی تو نہیں ہوئی, آخر یہ ہوا کیسے, حیران ہے لوگ, پریشان ہے. کسی نے کہا کہ اگر بارش ہو بھی جائے, اگر بارش ہو بھی جائے تو اثر کرتے کرتے اثر کرتی ہے, یک بارگی تو یہ سب کام نہیں ہوتا, یک بارگی تو یہ سب کام نہیں ہوتا. آخر وجہ کیا ہے, تو ہوتے ہوتے یہ بات حلیمہ کے شوہر کے کانوں تک بات پہنچی. کہا کہ بات کچھ یوں ہے کہ ہمارے گھر میں ایک مبارک بچہ آیا ہے کہ جس کے آنے کے برکت سے ہمارے بکریوں کے تھنوں میں دودھ آ گئے, اسی کی آمد کی برکت ہے. اگر اس کی برکتیں سننا چاہتی ہو تو ہماری بیوی حلیمہ سے سننا. اس نے راستے میں عجیب عجیب حالات دیکھے ہیں, عجیب عجیب ماجرے دیکھے ہیں, وہاں پر آپ کی پرورش انتہائی ناز و نعمت کے ساتھ ہوئی. حلیمہ نے انتہائی ناز و نعمت کے ساتھ ان کی پرورش کی ہے, بلکہ حلیمہ نے محمد کی پرورش نہیں کی ہے, بلکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیمہ کی قسمت کی پرورش کی ہے. حلیمہ اپنی قسمت کو پال رہی تھی, محمد کو نہیں پال رہی تھی. اس لیے کہ اسی کی برکت سے عرب کے وہ قبیلہ, وہ داعیوں کو جانتا کون ہے, آج بھی خدمت کرنے والوں کو, کام کرنے والے کو, لونڈیوں کو, غلاموں کو اہمیت کون دیتا ہے. وہ ایک قبیلے میں رہنے والے, دیہات کے رہنے والی عورت حلیمہ, اسے کون جانتا. بہت سی دودھ پلانے والیوں نے نہ جانے کتنے بچوں کو آج تک تاریخ انسانیت میں دودھ پلایا ہے, مگر حلیمہ ایک دودھ پلانے والی ہے کہ جسے آج تک لوگ جانتے ہیں. صبح قیامت تک چلا جائے گا اور قیامت میں جو شان ہوگی وہ تو الگ ہوگی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش ہوتی رہی, زمانہ گزرتا گیا, مگر وہاں پر بھی لوگوں نے دیکھا کہ آپ کے بچپن کا زمانہ تھا,
बचपन में लोग अपने बच्चों के अपने अमूमर बच्चों के साथ खेला करते हैं, उनके साथ रहकर वो या तो गलत बातें सीखते हैं या तो सही बातें सीखते हैं, जिसको जैसा माहौल नजर आता है। मगर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत ये थी कि आप अपने हम उम्र बच्चों के साथ नहीं खेला करते थे। आप जंगल के माहौल में चले जाते थे, सूखी हवा बिल्कुल सूखी फिजा में जहाँ आबो हवा साफ हो उस जगह चले जाते। आप एक बिल्कुल गोशे में रहते हो, आप सबकी तबीयत अलग, इसलिए कि आपने किसी के माहौल में आपकी परवरिश नहीं हुई, बच्चों से अलग तरह, इसलिए कि दस्ते कुदरत का वो हाथ अपने हाथों से आपका नक्श तैयार करना चाहता था, आपके फितरत को अपने हाथों से ढालना चाहता था, ताकि कोई ये न कहे कि मोहम्मद पर उस माहौल का असर है। मोहम्मद ने अपने माहौल की खुद तरतीब दी थी, वो बच्चों के साथ नहीं खेलते थे, यहाँ तक कि दस्ते फितरत ने अपने हाथों से मोहम्मद को सराहा, उसके नोक पलक को संवारा, उसकी किस्मत को, उसकी तबीयत को, उसकी सृष्टि को, उसकी फितरत को अपने हाथ से संवारा, सजाया, निखारा, सब कुछ किया। मोहम्मद यहाँ तक कि 2 साल की उम्र हुई, 2 साल तक दूध पिलाने की जो उम्र होती है, वो जब वो पूरी हो गई, हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु अन्हा आपको लेकर फिर वापस आई मक्का में, अमानत हज़रत आमिना को सुपुर्द कर दी। मगर अब एक तरफ ये वक्त था कि आमिना उसे सुपुर्द कर रही थी अमानत, आमिना का दिल कचोट रहा था, आमिना का दिल खुशी से बल्लियां उछल रहा था, हलीमा का दिल कचोट रहा था, मुसलसल उनके दिल पर गजब के आसार थे, नाराजगी थे और खफगी के आसार थे कि अब ये मुखड़ा हमसे जुदा हो जाता है। मगर आमिना रज़ियल्लाहु ताला ने उसे अपनी आगोश में लिया, चूमा, चाटा, उसे प्यार किया, खूब प्यार किया। मगर उसके बाद आमिना ने कहा कि हलीमा ये तुम्हारा बड़ा एहसान है, इस एहसान का कर्ज मैं तो अदा नहीं कर सकती, अल्लाह ही इसका कर्ज अदा कर सकता है। आमिना ने कहा मगर एक बात यह है कि उन दिनों जब आमिना हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा लेकर आई आपको, तो उस वक्त मक्का में एक बहुत जोर की बीमारी फैली हुई थी, बहुत वबा फैला हुआ था। एक वबा ऐसी फैली थी कि लोगों की जरा सा बुखार आता, जरा सी खांसी आती, तो लोगों को ये लगता कि अब मौत आने वाली है। घर के सामने, कबीलों के सामने न जाने कितनी कब्रें तैयार हो चुकी थी। मौत ने गोया के बनु हाशिम के कबीले को घेर लिया था। मक्का में हर आए दिन किसी न किसी के घर में मौत हुआ करती थी। एक वबा फैली हुई थी, लोगों की जानें जा रही थी, लोगों की जानें बेकार हो रही थी। हज़रत आमिना ने कहा कि हलीमा 2 साल तक तुमने रखकर इस बच्चे को बड़ा एहसान किया है, ऐसा करो कि मक्का में वबा फैली हुई है, लोगों की मौतें जिंदगियों से ज्यादा आसान होती चली जा रही है, तो ऐसा करो कुछ दिन और ले जाकर इसे अपने पास रखो, कुछ दिन और जाकर इसकी परवरिश करो, कुछ दिन और ले जाकर इसे देखभाल करो। हज़रत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की बातें खिल गई, मुस्कुराने लगी, तो आज फिर उनकी किस्मत का सितारा आसमान पर चमकने लगा। हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा 2 साल तक परवरिश की थी, अब फिर उन्हें परवाना मिल गया था। हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा दोबारा लेकर चली गई अपने घर में, फिर आपकी परवरिश होने लगी, यहाँ तक कि 3 साल का वक्त फिर गुजरता है। क्योंकि वक्त में मुख्तसर से वक्त में सारी चीज़ों को समेटा नहीं जा सकता है, बात को आगे बढ़ाते चले जाते हैं। हज़रत हलीमा रज़ियल्लाहु ताला जब 3 साल और वक्त गुजरता है, 5 साल की उम्र होती है, आप वापस लेकर चले आते हैं। वापस आने के बाद आप मक्का के माहौल में आपकी परवरिश होती है, तो मक्का का माहौल कितना खराब माहौल था। एक तो कुफ्र था ही, खुदा से तो दूरी थी है, उसके अलावा गुनाहों से इतनी महबत थी कि गुनाह इंसानों के सृष्टि में नस नस में दाखिल हो चुका था। शराब उसकी हड्डियों में पड़ा था, जुल्म, जोर, ज़िना, तहमत, ये सारी चीजें गोया कि उनके अखलाक का एक हिस्सा थी। जो जिसका माल हड़प कर सकता था, जो जितना कमजोर को दबा सकता था, जो जितना अपने गुलामों से काम ले सकता था, वही शख्स सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ समझा जाता था। जो शख्स अपने गुलाम से जितना ज्यादा काम ले ले, तो गोया के अरब में अब नस्ल का गुरूर था, गुलाम कभी भी आका के बराबर नहीं बैठ सकता था। ये सारी चीज़ों के दरमियान थे। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसे माहौल में परवरिश हुई थी। आप जवान होते चले गए, यहाँ तक कि आपकी सीरत, आपकी सूरत में चर्चे लोगों में होने लगे। लोग जब तन्हाई में बैठते तो कोई कहता कि अब्दुल्ला के बेटे को देखा है, क्या चेहरा मोहरा है, ऐसा चेहरा मोहरा आज तक किसी के देखने में नहीं आया है। बातें होती, चर्चे होते, कभी कभी तो सिर्फ सूरत के चर्चे होते, कभी जिस्म के चर्चे होते, कभी सर से लेकर पांव तक चर्चे होते। तो उसी में कोई एक शख्स कहता, कोई बुरा शख्स कहता, तुम लोग सिर्फ उसकी सूरत की बात करते हो, कभी तो उसकी सीरत की बात करो। हम
माहौल में कैसे लोग रहते हैं जहाँ शराब के बगैर सारी महफिल अधूरी रहती है। जो शराब ना पिया तो उस शख्स को कोई मकाम हासिल नहीं होता। मगर मोहम्मद अरबी को देखा है इतना खूबसूरत है मगर शराब नहीं पीता है, इतनी खूबसूरत है। वहाँ शराब न पीना ताज्जुब खेज था, वहाँ जुआ न खेलना ताज्जुब खेज था, वहाँ लोगों के सामने अपनी ताकतों का इजहार न करना ये ज्यादा ताज्जुब खेज था। वो ऐसा माहौल था, मुआशरा ऐसा था। जाहिर सी बात है कि जहाँ मौत का तसव्वुर न हो, जहाँ मौत के बाद जिंदगी का तसव्वुर न हो, जहाँ आखिरत के बाद अपने हिसाबों किताब का तसव्वुर न हो, तो वहाँ अगर ऐसे गुनाह पाए जाते हैं तो हैरत की बात क्यों नहीं है? हैरत की बात क्या होगी? इन्हें तो कोई डर ही नहीं, उन्हें कोई डर ही नहीं था। न मौत के बाद की जिंदगी का डर था, न हिसाब किताब का डर था। तो ऐसे माशरे में ऐसी बेजारी और गुनाह का पाए जाना कोई रवाज, कोई आम बात तो थी नहीं। नबी कायनात अलैहिस्सलाम की खूबसूरती की खुशखुशी के चर्चे होते हैं, यहाँ तक कि लोगों ने देखा कि न कभी ये शराब के करीब भटकते हैं, न कभी महफिलों में गाने बजाने की महफिल में शरीक होते हैं। ये सारी बातें देखते हैं, गुजरते चली जाती है। यहाँ तक के वक्त आता है कि जब आपकी उम्र शरीफ 12 साल की होती है, अबू तालिब आपकी काफिला बहुत तेजी के साथ गुजरता चला जाता है। आमना की वफात 6 साल की उम्र में हो जाती है। कुछ ही दिनों के बाद अब्दुल मुत्तलिब का साया सर से उठ जाता है, तो अबू तालिब जैसे गुसार चचा अब उनकी परवरिश करने लगते हैं। परवरिश इस तौर पर कि गोया के अपने बेटे की परवरिश कर रहे हैं। अब अबू तालिब ने पूरे एहतमाम के साथ अपने बेटे की तरफ उसकी परवरिश की, यहाँ तक कि जब आपकी उम्र शरीफ 12 साल की हुई तो अबू तालिब रज़ियल्लाहु ताला अबू तालिब वो शाम की तरफ अब जा रहे थे तिजारत के लिए, तिजारत की तरफ जाने लगे। तो उस वक्त ये फिक्र उन्हें लायक हुई कि हमारे जाने के बाद मोहम्मद की रखवाली कौन करेगा, हमारे भतीजे की रखवाली कौन करेगा। ये अभी इसकी इतनी उम्र नहीं है कि शाम तक इन्हें सफर में ले जाया जा सके। इस बच्चे की अभी इतनी उम्र नहीं है कि सफर की मुश्किलों को बर्दाश्त कर सके, उन्हें मुश्किल लायक हुई। मगर आका कायनात अलैहिस्सलाम मोहम्मद अरबी ने अपने चचा से कहा कि चचा मैं आपके साथ सफर पर जाना चाहता हूँ। अबू तालिब को उस वक्त उनकी आखिरी कह रही थी कि नहीं, इस बच्चे को साथ में ले जाना गवारा नहीं है, इस बच्चे को साथ में ले जाना मुनासिब नहीं है। सफर में बहुत सारी मुश्किलात आती है, कभी रेगिस्तानों में दूर दूर तक पानी नहीं मिलता। इस बच्चे को अगर प्यास लग गई तो मैं कैसे इसके मुदावा करूंगा। अब तालिब की खिलायत हुई, मगर उसके बाद उधर अक्ल पर उनकी मोहब्बत गालिब आ गई, क्योंकि अब मोहम्मद अरबी की जबान खुल गई थी। उनकी जबान खुल गई थी, चचा मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ। आखिरकार उनकी जबान की दाग रखी, उन्हें अपने साथ रख लिया। मगर अबू तालिब को ये फिक्र थी कि मोहम्मद को सहारा कैसे देंगे, इनका ख्याल कैसे करेंगे, रखवाली कैसे करेंगे। मगर अबू तालिब को हैरत उस वक्त हुई कि मोहम्मद अरबी न सिर्फ ये कि अपना ख्याल रखते थे, बल्कि चचा का काम भी आसान करते जाते थे। यहाँ तक कि आप एक मकाम पर जब आप पहुंचे हैं और एक दरख्त जो सूखा हुआ था, इंतहाई सूखा हुआ था, उस दरख्त के साए में अबू तालिब बैठे अपने ऊंट को बांधा है और वहां पर आराम करने लगे हैं। मोहम्मद अरबी भी उस जगह आराम फरमाने लगे। तो उस जिस पेड़ के नीचे आप बैठे थे वो सूखा हुआ पेड़ उसी वक्त दम के हरा हो गया। एक वहां पर नस्तूरा राहिब एक अंसारियों का एक बहुत बड़ा आलिम था, तो उस वक्त वो किताबों में तौरात का इल्म रखता था, ज़बूर का भी कुछ इल्म था उसे, उसने किताबें पढ़ी थी। वो चलते फिरते इत्तेफाक से उस पेड़ के पास से गुजरा, तो जब उस पेड़ पर उसकी नजर पड़ी, देखा जाए ये पेड़ तो कल सूखे हुए होते, आज हरा कैसे हो गया। अभी वो सोच ही रहा था, सोचते सोचते उसकी नजर मोहम्मद अरबी पर पड़ जाती है। उसके चेहरे पर ऐसा नूर नजर आता है कि उसे अपनी किताबों में पढ़ी हुई बातें याद आने लगती है कि हमने किताब में एक बात पढ़ी थी कि एक शख्स ऐसा आएगा कि जो इस पेड़ के नीचे में क़याम करेगा जिसकी बरकत से ये पेड़ हरा हो जाएगा। उसने अपनी वो बात समझी तो अबू तालिब को बेदार किया और बेदार करने के बाद कहा कि हमने ये बातें अपनी किताबों में पढ़ी है, यकीनन इस बच्चे का इकबाल बहुत बुलंद होगा। एक दिन वो आएगा कि दुनिया में इसकी अजमतों के चर्चे होंगे, पता नहीं मैं उस वक्त तक दुनिया में रहूं या न रहूं, हमारी जिंदगी वफा करे या न करे। मैं तुमको गवाह बनाता हूँ कि आज से मैं मोहम्मद अरबी का गुलाम हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अभी मोहम्मद अरबी ने अपनी नबूवत का ऐलान नहीं किया है कि आपके गुलाम पैदा होने लगे। अब नबी कायनात अलैहिस्सलाम मोहम्मद अरबी का सफर होता है,
शाम का सफर इंतहाई हैरत अंगेज। अबू तालिब ने इस सफर में बेपनाह बरकतें देखी। उसके साथ साथ आपका गुलाम था मैसर अबू तालिब का, उस गुलाम ने ये देखा। आने के बाद लोगों ने बयान किया कि जहां जहां हम जाते थे हमारी ऊँटनी जहां जहां जाती थी बादल का टुकड़ा हमारे साथ सहायक रहता था। इस तरह से आपकी जवानी गुजरती चली गई, वक्त गुजरता चला गया, हर तरफ आपकी अजमतों के चर्चे होने लगे। आपके लोगों में ये बात मशहूर थी कि उस मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह की खासियत ये है कि जब किसी से कोई वादा कर लेता है तो उस वादे को किसी हद तक भी वो पूरा करता है। और यहाँ तक कि अबू तालिब के साथ आप शाम जाते जाते आपको तिजारत का अच्छा खासा तजुर्बा हो गया और अबू तालिब को खूब खूब बरकतें हुई। उस जमाने में जब आपकी उम्र शरीफ, आप जवानी के दहलीज पर कदम रख चुके, आप अंदाजा करें उस बच्चे का बचपना इतना पुरकशिश था कि जो देखे वो देखता रह जाए। अब तो पूरा जवानी आई थी उस जवान पर, उस जवानी का ये आलम था कि उस जवानों पर हजारों जवानियां कुर्बान। नबी कायनात अलैहिस्सलाम उम्र की 25 बहारें देख रहे थे कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उस वक्त अरब की एक बेवा औरत थी, एक बेवा औरत, पुरसानिहाल कोई नहीं। जाहिलियत के ज़माने में बेवा को कोई मकाम नहीं दिया जाता था। यहाँ तक एक मवावा किया था कि शौहरों के साथ उन्हें जिंदा जला दिया जाता था। मगर खदीजा थी कि इंतहाई पाकबाज, इफ़्फ़त शहार खातून, 40 साल की उनकी उम्र थी, 2 बच्चे थे उनके। हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उनका बहुत बड़ा अपना एक तिजारत था, एक कारोबार था उनका, वो तिजारत करती थी। तो किसी ने उन्हें मशवरा दिया कि मोहम्मद है, उनका अपना तो कोई माल है नहीं उनके पास, तो वो तिजारत करने जाते हैं। मोहम्मद की अमानत, उसकी जानबदारी लोगों में मशहूर है। तो खदीजा आप ऐसा क्यों नहीं करती कि आप अपना माल तिजारत मोहम्मद को दे दिया करें, वो आपके माल को देकर बेच कर ला दिया करेंगे, जो नफा होगा आप अपने एतबार से उसे तकसीम कर लिया। इसलिए कि ये जमाना है धोखे का जमाना है, फ्रॉड का जमाना है। लोग ले जाते हैं बेचते हैं कितने में, आकर दाम कुछ बताते हैं। लोग ज्यादा दाम के सामान को कम कीमत में बेचकर मुनाफा अपने पास चुरा लेते हैं और कहते हैं कि घाटा लग गया। तो इस फ्रेम के दौर में, इस धोखाधड़ी के माहौल में एक मोहम्मद है जो सबसे सच्चा है। ऐसा क्यों रखा है कि आप उससे तिजारत के मामला उससे दुरुस्त कर ले। हज़रत खदीजा ने आपसे राब्ता किया, मोहम्मद अरबी उससे राजी हो गए, यहाँ तक कि आप उनके माल को शाम लेकर गए। जब शाम की मंडी से आपने अपना हिसाब किताब जब किया है खदीजा की बारगाह में, तो अब तक वो एक जमाने से तिजारत करती जा रही थी, मगर इस तिजारत में जो उन्हें फायदा मिला था ऐसा फायदा उन्हें कभी नहीं मिला था। उस वक्त मोहम्मद अरबी की आमाल के चर्चे घर घर होने लगे। पहले लोग सिर्फ उनके हुस्न के चर्चे करते थे, मगर अब उनकी सीरत के चर्चे होने लगे। मोहम्मद अरबी बड़े नेक हैं, बड़े सच्चे हैं, ज़बान के पक्के हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते हैं, वो कभी शराब नहीं पीते हैं, गलत आदतें उनमें कोई है ही नहीं। गोया कि वो एक कुंवारी लड़की है, कुंवारी लड़कियों में जैसी हया होती है, कुंवारी लड़कियों जैसी हया है मोहम्मद में। यहाँ तक कि हज़रत खदीजा के मामला दुरुस्त हो गए, कारोबार में अपना मुनाफा हुआ, अमानतदारी हुई। अब खदीजा के दिल में अमान पैदा हुए कि जवान है, ऐसा शरीफ जवान अरब के किसी घर में आज तक पैदा नहीं हुआ। पूरा अरब मुआशरा ऐसा जहालत में डूबा हुआ था, और यानियत, फहाशी, गाली गलौज, ये सारी चीजें उनकी जिंदगी का एक लाज़मी हिस्सा था और उनकी जिंदगी की खासियत बन चुकी थी। तो किसी ने मशवरा दिया कि खदीजा आप ऐसा क्यों नहीं करते, आपका सारा काम उन्हीं से चलता है, तो आप जायज तरीके से उनसे निकाह का पैगाम दें। अगर वो कबूल कर ले, हालांकि बात तो ये है कि मोहम्मद अरबी की सूरत ऐसी है, सीरत ऐसी है, मुखड़ा ऐसा है कि अगर वो ज़बान खोल दे तो मक्का की कोई ऐसी लड़की नहीं है जो ना कर सके। चाहे अरब के कितने बड़े कबीले के सरदार की बेटी हो, कोई ना नहीं कर सकती है। मगर खदीजा आखिर एक बार पैगाम देने में हर्ज क्या है, कबूल या इनकार करना उसके बस में है, मगर एक बार पैगाम तो देकर दे सकती हो। यहाँ तक कि पैगाम दिया गया। हज़रत खदीजा ने पैगाम भिजवाया आपके पास। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 25 साल की कड़ियल जवानी में 40 साल के साथ निकाह करना मंजूर कर लिया। तारीख का यही वो मकाम है जहाँ इंसानियत हैरान है, लोग परेशान हैं, लोग इल्जामात आयद करते हैं नबी कायनात अलैहिस्सलाम पर कि अपनी माँ की उम्र से की औरत से शादी किया। मगर कलेजा चाहिए इस जमाने में कि है कोई ऐसा शख्स जो 25 साल की कड़ियल जवानी में 40 साल की बेवा से 2 बच्चों की माँ से शादी करने का कह
देना आसान है कि अपनी माँ जैसी औरत से शादी किया, मगर है कोई जिगर कोई अपने बेटे की शादी इतनी उम्र दराज औरत के साथ करे। नबी कायनात चूंकि उन्हें पूरे जमाने के लिए आइडियल और रहनुमा बनना था, उन्हें बेवाओं का मकाम बताना था कि नहीं ये भी इंसान है, इनके भी दिल में जज्बात है, इनके दिल में भी इंसानियत है, ये भी हमारी तरह, इनकी भी दो आंखें हैं, इनकी भी दो नाक है, सारी चीजें इंसानों की तरह है, ये भी तो इंसान है, इन्हें भी जिंदगी जीने का हक है। नबी कायनात अलैहिस्सलाम ने बात को मंजूर करके अबू तालिब ने निकाह पढ़ाई, यहाँ तक कि हंसी खुशी आपकी जिंदगी नफरत होने लगी और जिंदगी गुजरती लगी और आपकी दयानतदारी के चर्चे हर घर में तो थे ही। यहाँ तक कि एक वक्त वो आया कि आप मक्का में एक सफा नाम की पहाड़ी थी, सफा के मकाम पर आप पहाड़ पर आप पहुंच गए। पहुंचने के बाद लोगों को आवाज दिया, लोगों को बुलाया, मुनादी किया और लोगों ने जब आपकी आवाज सुनी तो उनकी हैरत की इंतहा न रही कि मोहम्मद को लोगों ने बोलते हुए बहुत कम देखा था। आज क्या वजह है कि इतने बुलंद मकाम से वो खड़े होकर आवाज दे रहे हैं। लोगों को हैरत हुई, लोग एक एक जो जिस हालत में थे, कोई धान काट रहा था तो हथियार लेकर अपने साथ चला आया, कोई कुछ काम कर रहा था, कोई कुदाल चला रहा था, कुदाल लेकर अपने साथ चला आया, कोई जिस हालत में जिस काम में था, कोई जंग कर रहा था, हथियार उसके हाथों में थे, हथियार लेकर लोग जमा हो गए। जब सभी लोग जमा हो गए, मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहाड़ के ऊपर एक मकाम पर आप चल थे, लोग नीचे थे। आपने कहा कि लोगों अगर मैं तुमसे ये कहूँ, उस जमाने में होता ही था जब कोई हंगामी सूरत हाल होती थी तो लोग बुलंद जगह पर खड़े होकर आवाज देते थे ताकि लोग आए और उनको इत्तला कर दें। तो लोगों ने सोचा शायद कोई दुश्मन हमारे कबीले पर हमला आवर होने वाला है, इसलिए मोहम्मद उसकी इत्तला देने के लिए बुलाते होंगे। इसलिए मोहम्मद आम हालात में बहुत कम बोलते थे। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां पर जब आवाज आपको मदऊ किया, मदऊ करने के बाद नबी कायनात अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि लोगों अगर मैं ये कहूँ कि इस पहाड़ के नीचे से मैं बुलंद जगह पर हूँ, पहाड़ के दोनों तरफ सिर्फ मैं देख रहा हूँ, तुम तो सिर्फ पहाड़ का एक तरफ देख रहे हो क्योंकि पहाड़ बहुत ऊंचा है, दूसरी तरफ तुम्हारी नजर नहीं है। तो अगर मैं ये कह दूं कि पहाड़ के पीछे से एक लश्कर है जो हमारे कबीले पर हमला आवर होने वाला है, तो क्या तुम हमारी बात को मान लोगे? तो सबकी जबान ने कहा कि मोहम्मद कैसी बात करते हो, हमने आज तक सुबह से शाम तक तुम्हारा देखा है, 40 साल की उम्र देखी है, कभी हमने अपने झूठ बोलते हुए नहीं देखा है, कभी तुमने गलत बात करते हुए तुम्हें नहीं देखा है, सारी बातें हमने देखी है, तुम्हारी सारी बातें नेकी की हुआ करती हैं। अगर तुम कहोगे तो, अगर नहीं भी होगा तो मान लेंगे, तुम अभी कहोगे कि ये दिन है, तुम रात मानोगे तो रात मान लेंगे। तो हमने तुम्हें हमेशा सच्चा बोलता हुआ पाया है। तो आका करीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये बातें हमने बस समझाने के लिए कही थी, मगर अब जो बात कहने जा रहा हूँ ये बात बिल्कुल सच है, बिल्कुल हक है, बिल्कुल सदाकत की रोशनी में कह रहा हूँ। और अब अल्लाह के रसूल सर्वे कायनात अलैहिस्सलाम ने इस्लाम का पैगाम, पहला पैगाम लोगों के दरमियान पहुंचाने की कोशिश की और कहा कि लोगों अब मैं जो बात कहने जा रहा हूँ वो ये है कि क़यामत बहुत करीब है, मरने के बाद जिंदा होना है, अल्लाह की बड़ाई बयान की, आखिरत के बाद जिंदगी का हिसाब किताब किया और कहा कि लोगों इस तरह से जिंदगी गुजारना इंसानियत नहीं है, दूसरों का हक दबाना ये इंसानियत नहीं है, बल्कि इंसानियत ये है कि इसके बाद तुम्हें हिसाब देना है, उस हिसाब के लिए अपने आप को तैयार करो। जो इस जिंदगी में जैसा करोगे फिर उसके बाद आने वाली जिंदगी में हिसाब किताब देना होगा, उसके बाद तुम्हें सजा जज़ा गुजरना होगा। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये बात कही है, लोगों की ज़बानें निकल गई, कहा कि ये कैसी बातें कर रही है। अरब के लोगों के लिए एक बिल्कुल नई बात थी कि मरने के बाद जिंदा होना है, ये तो इंतहाई ताज्जुब खेज बात कर रहे हैं, मर गए तो उसके बाद जिंदगी, ये तो पहली बार है, आज तक किसी को हमने ऐसा नहीं सुना। लोग कहते थे क्या इसीलिए बात जमा किया था? अबू जहल जो वहां पर जमा था, अबू लहब अपने खच्चर पर सवार था, अबू लहब ने कहा, इस उंगली के इशारे से कहा था अबू लहब ने, मोहम्मद क्या मोहम्मद तुम्हारे लिए हलाकत बर्बादी हो, क्या इसी बात के लिए हमको जमा किया था? मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात को सुना, कोई जवाब नहीं दिया।
لیے کہ آپ کو ایسا نبی بنا کر بھیجا گیا تھا جو حلیم بردبار تھے. نبی کائنات علیہ السلام خاموش رہے مگر مشیت مسکرا رہی تھی. مشیت نے کہا کہ اے محبوب تم خاموش رہو, اس بدتمیز کو میں جواب دوں گا. قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابو لہب کے غضب و قہر میں ایک سورت فرمائی اور کہا کہ تبت یدا ابی لہب, ابو لہب تمہارے دونوں ہاتھ. تاریخ نے دیکھا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ گلے ہو گئے. اس نے ایک انگلی کے اشارے سے اشارہ کیا تھا ابو لہب کا, ابو لہب کے دونوں ہاتھ لولے ہو گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا غضب نازل ہوا نبی کائنات علیہ السلام کے اوپر. اب جب نبوت کا 40واں سال چڑھا ہے, عمر آپ کی 40ویں سال ہوئی ہے نبی کائنات علیہ السلام کے, تو اس وقت غار حرا میں آپ طلبگر تھے. آپ جب آپ کے اوپر نبوت کا زمانہ آنے والا جو ہوا تھا, آپ غار سے دور جاتے, لوگوں سے دور رہتے, غار میں زندگی بسر کرتے, تھوڑا سا کھانا آپ کے ساتھ رہتا تھا, وہی زندگی بسر کرتے. غار حرا کا غار تھا. نبی کائنات علیہ السلام کے پاس پیغمبر آئے, پیام قدس آیا, جبریل امین آئے, اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام نازل ہوا. وہ کلام جس میں اللہ کے نام کے ساتھ ساتھ انسانوں کا مقصد تخلیق کا ذکر تھا, انسان کیوں پیدا کیا گیا, اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے, اس کی زندگی کی چال ڈھال کیسی ہونی چاہیے. اس کے ساتھ پیام جبریل امین حاضر ہوئے. جبریل امین تھے, غار حرا تھا, محمد عربی کی ذات تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام تھا. اس زمانے میں کیا ہوا ہم نے اس کیفیت کو دیکھا نہیں, ہم نے اس واقعے کو دیکھا نہیں, ہماری کانوں نے صرف سنا ہے, ہماری اوپر وہ بات بیتی نہیں, ہم اس کو محسوس کیسے کر سکتے ہیں. بس جو کانوں نے سنا ہے اسے بیان کرتے ہیں, ورنہ وہ راز کو اللہ جانے, اس کا محبوب جانے, تیسرا کوئی نہ جانے. یہ وہ عالم ہے جس کی خبر خود جبریل امین کو بھی نہیں ہے. ہم کیا بیان کر سکتے ہیں. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم گھر آئے اور سب سے پہلے اپنے بیوی حضرت خدیجہ کو بتایا. آپ اندازہ کریں کہ بیوی, یہاں پر عورتوں کا مقام بتانا مقصود تھا کہ حضرت خدیجہ حضرت نبی کائنات علیہ السلام پر ایک ہیبت طاری ہو گئی, کیونکہ اللہ کا کلام نازل ہوا تھا. وہ اللہ کا کلام جس کی ہیبت, جس کی جلال کا عالم یہ ہے کہ خود اللہ فرماتا ہے کہ اگر یہ کلام, یہ قرآن جو ہے, اگر محمد عربی کی بجائے کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ اس کلام کی ہیبت سے ذرہ ذرہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. مگر یہ محمد عربی کا مجال تھا, یہ ان کا قلب تھا جو برداشت کر لیا, اور عرب کے سینے میں وہ پہاڑ پہ چاک ہو جاتے, محمد عربی نے اپنے سینے پر برداشت کر لیا. محمد عربی برداشت کر لیا, مگر قلب پر ایک دہشت سی طاری ہو گئی, آپ کے جسم پر لرزہ آ گیا. آپ کانپتے ہوئے خدیجہ کے پاس آئی تو یہاں پر قدرت کو عورت کا ایک مقام بتانا تھا کہ پہلی عورت جب حیبت کے اس عالم میں عورت کی تسکین بھرے, محبت بھرے کلمات آقا کریم علیہ السلام کی کانوں میں گونجیں گے تو آپ کی حیبت انسیت سے بدل جائے گی. عورت کا بھی اس وحی کے پہلے پیغام میں بھی عورت کا ایک حصہ شامل ہو جائے گا, اور تاکہ لوگوں کے درمیان جب عورت کے ذریعے سے وحی کا پہلا پیغام پہنچے گا تو عورتوں کا مقام ظاہر ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کائنات علیہ السلام کو 40ویں سال کی عمر میں جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو اس وقت دنیا اندھیرے سے اجالے کی طرف آنے لگی, کیونکہ باتیں تو بہت ساری ہیں, 1.5 گھنٹہ کا وقت ہو چکا ہے, اب میں بھی تھک گیا ہوں. انشاءاللہ یہ قافلہ سفر رواں رہے گا, پیدائش سے لے کر نبوت تک کی بات ہوئی ہے, زندگی رہی اور پھر یہی موقع رہا. انشاءاللہ آگے کے بھی تذکرہ کریں گے, ورنہ نبی کائنات علیہ السلام کی زندگی کو یہ بہت مختصر کے ساتھ بیان کیا گیا کہ نبوت کا واقعہ ابھی تک صرف 1.5 گھنٹے تقریباً اتنا بیان ہوا, مگر اگر ان کے ہر ایک گوشے کو بیان کرنے لگے پھر انسان کی زندگی ختم ہو سکتی ہے. دنیا کے تمام لکڑیوں کو اگر قلم بنا لیا جائے, دنیا کے سارے جتنے پانی ہیں ان کو سیاہی بنا لیا جائے تو وہ سارے سیاہی سوکھ جائیں گے لکھتے لکھتے, مگر ان کی صفات کا سنا کا ایک حرف نہیں لکھا جا سکتا. وہ شان ہے, ہم جتنا بھی بیان کریں کم ہے, ہم کیا بیان کر سکیں گے. اس کی شان تو وہی ہے جو اللہ بیان کرتے ہیں. اللہ نے جسے اس کو جتنا بڑھایا ہے, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بیان کرتے ہیں, وہی بیان کر سکتا ہے. ایک غلام کی کیا شان ہے کہ اپنے آقا کی شان بیان کرتے ہیں. تھکی ہے فکر رسا اور مدح باقی ہے, قلم ہے آب لپا اور مدح باقی ہے, اور تمام عمر کہا مدح باقی ہے, ورق تمام ہوا مدح باقی ہے. سفینہ چاہیے اس بحر بے قرار کے لیے, اس کے لیے ہزاروں زندگیاں کم پڑ سکتی ہے, مگر آقا کائنات علیہ السلام کی سیرت کا حق ادا نہیں کیا جا سکتا ہے. بس دعا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبھی کو آمد رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں
हमें अमली तौर पर उनके गुलामी में शामिल फरमाए। आमदे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बिलखुसूस इंसानियत की खुशी का दिन है, अल्लाह से दुआ है कि इस मुबारक मौके से अल्लाह तबारक व तआला पूरी दुनिया को इंसानियत का दर्स अता फरमाए और पूरी आलम इस्लाम को अमन और शांति अता फरमाए, आलम पूरी दुनिया को अमन और शांति का गवारा बनाए, हमारे दरमियान उल्फत मोहब्बत अखुवत की परवान चढ़ाए। आलमीन हमारे मुल्क की खैर फरमा, हमारे मुल्क में अमन शांति की फजा फरमा फरमा, हमारे मुल्क को तरक्की अता फरमा, हम सबको तरक्की अता फरमा, हम सबके ईमान अमल अकीदे के हिफाज फरमा, हम सबको इस दुनिया में अगर बाकी रख तो अपने कलमे के साथ बाकी रख, हमारी सांस आने से पहले हमारा कलमा हमसे जुदा न हो, हम जाए इस दुनिया से तो हम अपने कलमे के साथ इस दुनिया से जाए। अब जिसके जी में आए वही पाए रोशनी, हमने तो अपना दिल जला के सरे आम रख दिया। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबी कायनात अलैहिस्सलाम जब इस खाकदाने गीती पे तशरीफ लाए तो उस वक्त दुनिया के सारे शजर व हजर, परिंदो तरिंदे, जानवर, यहाँ तक के एक एक ज़र्रा आक़ाए कायनात अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम की खिराज भेज रहा था। तो उनका जब ये हक था तो हम तो इंसान है, अशरफुल मखलूक़ात है, हम उससे 100 दर्जा इसके ज़्यादा मुस्तहिक़ है कि आक़ाए कायनात अलैहिस्सलाम की बारगाह में सलाम के लिए बाअदब खड़े हो जाए और आक़ा की